Yeah, good evening, everyone. Good evening. Okay. Tell your friends to join because in few minutes, sir is going to join. Srikant sir is going to join here and he is going to enlighten us about the current market scenario, and also he will tell us about the demat account of the Motilal Oswal, and he is going to. Yeah, so hi, Srikant sir has joined here. Thank you, sir, for joining. And yes, I'll take few minutes to introduce Srikant sir. Srikant sir is having a, a good experience in this share market. He's been trading from last 7 to 8 years, and he is well known in this vicinity area, like Palghar Boisar area is well known in the like in the field of stock market, and he has given guidance to many of the students in this area. So thank you so much, sir, for joining this session. I would like to over to you, session, sir. Over to you. You can start with the session. Thank you, sir.
Okay. Thank you. Thanks, Maksud sir. Am I audible? Hello. Am I audible? First of all, Yes, sir, my you voice are is audible. clear. And Yeah. also, I would like to tell all the students that if you want to ask any of the question, you can put on your mic and you can ask the question. Do not reply in the chat box today. You will not reply in the chat box today. Yes, if you are replying, no problem. I will convey your chat box message to Shrikant sir. Okay. And if you want to ask anything, like it will be an interactive session. So sir is going to ask you many things. So you can reply it by putting on your mic. Okay. Let's start with the session, sir. Okay. Good evening, everyone. And first of all, I would like to thank Sir Maksud sir for giving me an opportunity to come in between of you all. And actually, I am very thankful that I am able to come in between of you all, and I am able to interact. I have got an opportunity to interact with you all. Okay, so today there will be a completely interactive session. Feel free to communicate with me, and you could ask any of your queries, any of your doubt. Okay, when I was a teenager, when I was of 18 or 19 years of age, at that time there was not that much awareness regarding this stock market, and then there was no one with me to guide related to the stock market. What is the right direction, whether to go for investing, whether to do trading and all. I find you all very lucky that you have got a Maksud sir. You have chosen also Maksud sir to guide you, to teach you, to at least show you the path where you have to go, what will be the direction, how to go. Okay, so that is very nice. You should take advantage of this opportunity. Okay, we and I would really I want you all to feel the importance of financial freedom. Okay, financial freedom is very important in today's life. ठीक है, जैसे कि हम सब यहाँ पे मुंबई में रहते हैं. मुंबई का लाइफ बड़ा बिजी लाइफ रहता है. ओके, एवरीवन इज रनिंग बिहाइंड मनी. Okay, everyone is behind money. Day in day out they are running in that local trains and all. बस में ट्रैवल कर रहे, बाइक में ट्रैवल कर रहे, कार में जा रहे. ऑफिस टाइम पे पहुंचना है, नहीं तो बॉस डांटेगा. If I cannot take a leave on my wish to live my own life because I would be thrown out of my job. Every salaried person have this feeling. A businessman is working day in and day out for, there is a direct reward, risk reward relationship, effort reward relationship in business. How much, if I work more and more, I will get more reward. In there, everyone is just working and working. When the spirit of living the life is lost. There is no that much excitement of living life. In this stock market now, you will get financial freedom benefit. Okay, आपको कोई टेंशन नहीं है. ठीक है, if you have got proper knowledge of investing as well as trading, okay, you will be not scared of anyone will scold you. You will get a complete freedom to enjoy your life of your own choice. आज आपको नहीं जाना ऑफिस, मत जाओ. ठीक है, क्या होगा, बॉस आपको निकाल देगा, निकाल दो ना. We have the knowledge of stock market. We could आराम से earn through that. Okay, the power of compounding, investing. Okay, if you have started investing from the age of 18 and 19, ये एज से अगर इन्वेस्ट करोगे, आने वाले 10, 12, 13 साल तक अगर तुमने कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट किया, you will get a sizable portfolio. आप 30 to 35 एज में आप आराम से you could retire. Okay, because your dividend income will come from that. Okay, the bonus, you will get bonus issues, you will get right issues from the company. Your wealth will compound, your wealth will grow. Okay, so that's the power of compounding. You should learn this if you have opted this course. Okay, so you should learn what's the power of compounding. It's the eighth wonder of the world. Okay, the investing is very important. Invest to stay invested is very important because आपको सबसे ज्यादा रिटर्न्स कहाँ पे मिलेगा. अगर आप अर्न कर रहे हो, आपको सबसे ज्यादा सेविंग अकाउंट में सबसे कम रिटर्न मिलता है, 3 to 3.5%. उसके बाद किस पे रिटर्न्स मिलेगा आपको, एफडी पे रिटर्न मिलेगा 5%.
उसके बाद आपको किस पे रिटर्न मिलेगा? यू विल गेट रिटर्न देन इन पीपीएफ. Okay, after that you will get a return in say in real estate or bonds. Okay, after that you will get maximum return in mutual fund. 15 से 20% आपको म्यूचुअल फंड जाएगा. But equity is the only class of asset where you will get 100% return in 1 year. एक साल में आपको 100% रिटर्न मिल सकता है. There is no substitute of equity. It's a fastest growing asset on earth. इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. आप अगर अभी 1 लाख एकदम वेल रिसर्च्ड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में अगर आप 1 लाख लगाओगे, बहुत जबरदस्त चांसेस है कि वो 2 लाख का हो सकता है आने वाले 2-3 महीने में, 6 महीने. ठीक है, तो देयर इज इतना फास्ट कुछ ग्रो नहीं होता जितना फास्ट इक्विटी मार्केट ग्रो होता है. इसकी स्टडी अगर तुम अभी 18 ईयर देखो, नॉर्मली बच्चे, दिस इज द टाइम फॉर यू ऑल टू डिसाइड योर करियर. ओके, ये 18, 19, 20 ये कॉलेज डिग्री टाइम है आपका, ये आपका एज है टू डिसाइड योर करियर. कोई सीए लेगा, कोई सीएस लेगा, कोई एलएलबी के लिए ऑप्ट करेगा, कोई एमबीए जाएगा. पर अगर हम नहीं है ये सब, अगर हम नहीं ऑप्ट करेंगे तो क्या हम कोई दूसरा करियर अपॉर्चुनिटी नहीं है हमारे लिए? दिस इज अ एक्सीलेंट करियर अपॉर्चुनिटी, स्टॉक मार्केट. यहाँ पे आप घर पे बैठ सकते हो, 9:15 को मार्केट खुला, 10:30, 11 बजे तक यू कुड आराम से ट्रेड आउट. दिन में 1000, 2000 आराम से आता है. कौन बोला नहीं आता है? मैं कंसिस्टेंटली मेरे क्लाइंट्स के आपको डीमैट अकाउंट शो कर सकता हूँ. कंसिस्टेंटली हम 1000 to 2000 मिनिमम डेली हम अर्न करते हैं 9:15 से 11, 11:30 के बीच. 2 घंटे में 2000 रुपीज हम डेली इंट्राडे ट्रेडिंग से अर्न करते हैं. प्लस ये पैसा फिर अपन कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां पे भी हमारा वेल्थ क्या होते रहता है? ग्रो होते रहता है. प्लस अपना इंट्राडे ट्रेडिंग भी जनरेट होता है. ठीक है, तो ये भी तुम ऑप्ट कर सकते हो. अल्टीमेटली अपने को क्या अर्न करना है? मनी अर्न करना है. इट्स द इजीएस्ट वे टू अर्न मनी, बट इफ इट इज इजी इफ यू हैव प्रॉपर नॉलेज अबाउट इट. वरना बेटा इधर हीरो से जीरो बनने को भी टाइम नहीं लगता, जितना जीरो भी हीरो बन सकता है यहाँ पे, तो हीरो भी जीरो बन सकता है इफ यू हैव नो नॉलेज. यू शुड हैव प्रॉपर नॉलेज अबाउट दैट. ओके, सो Maqsood sir have been guided you relating to various ratios like return on capital employed और debt equity ratio and all. ठीक है, उन्होंने बहुत सारे कंपनीज के बारे में आपको स्टडी कैसे करना है बता रहेगा. सो आई विल नाउ शो यू समथिंग. ओके, आपके लिए बहुत काम का रहेगा. ओके, यू शुड जैसे कि आपको जानना है अभी 8000 to 9000 स्टॉक्स. अभी इधर से वी आर नाउ इन द बिजनेस एंड, यहाँ से अपन बहुत अभी इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे. ठीक है, 8000 to 9000 स्टॉक्स एनएसई में लिस्टेड है, एनएसई बीएसई. अब उसमें से कौन सा स्टॉक अच्छा है, कौन सी कंपनी अच्छी है जिधर मैं इन्वेस्ट करूं, जो वो कंपनी मेरा पैसे से अच्छा प्रॉफिट कमाएगी और वो प्रॉफिट मेरे को डिविडेंड के रूप में वापस मिलेगा, कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ेगा. कौन सी है वो कंपनी जहां मेरे को इन्वेस्ट करना चाहिए, मेरे पैसे को पार्क करना चाहिए, विच इज द कंपनी वेयर आई शुड पार्क माई मनी. Okay, so the NSE has done has helped out us in some manner by creating some indices. NSE ने कुछ indices create किए हमारे लिए for newcomers, जिसका इस्तेमाल करके हम एक थोड़ा सा जजमेंट ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं कि अच्छा ये कंपनीज अच्छी है, ये सेक्टर अच्छी है जिसपे हम पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं. मैं आई विल गिव यू एन एग्जांपल. ओके सर, कैन आई शेयर द स्क्रीन? मकसूद सर, You can share, sir. No problem. Okay. Thank you. Okay. Share. हाँ हाँ, on the screen screen sharing. Okay. Is the screen is visible to you all? The screen is visible. Hello. No, sir. No. Okay. 1 minute. 1 minute. As soon as it gets visible, just say me. Yes, sir. It is visible now. It is visible. Okay. Now I am Yes. going to a app which is known as Money Control. It's a free app available on Play Store. Okay. Now I am going there. I am going where? On Money Control. आप देख लेना तुम लोग, ये बहुत काम, मतलब it's basic, it's pure basic, पर बहुत काम का है. ठीक है, बहुत काम का है. ठीक है, you will always be in a right path if you choose what I am telling you, if you will be there. ठीक है, I am went now in Money Control app. Okay, are you able to see the Money Control app? Yes, sir. Okay, so there I am choosing now Indian indices. Where I am going?
Indian indices. Okay, there are Indian indices, there are global indices. I'm choosing Indian indices. उसके अंदर हम चूज कर रहे हैं NSE, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE हम चूज कर रहे हैं। ओके ओके, तो NSE जब हम चूज करेंगे तो क्या आएगा हमको, उधर देखो दिख रहा है निफ्टी 50, फिर तुमको दिख रहा होगा सॉरी निफ्टी बैंक, फिर तुमको दिख रहा होगा निफ्टी मिड कैप 100, फिर तुमको दिख रहा होगा निफ्टी स्मॉल कैप। आर यू एबल टू सी दिस? Yes. Yes, ओके, sir. तो ना तो ये हम ये क्यों बनाया उन्होंने? निफ्टी 50 का क्या मतलब है? टॉप 50 कंपनीज इंडिया की, तुमको अगर जाननी है कौन सी है करंटली इंडिया के टॉप 50 कंपनीज, तुमको अगर जाननी है कौन सी है तो ये निफ्टी 50 के अंदर जाके तुमको पता चल जाएगा कि करंटली इंडिया की टॉप 50 कंपनीज कौन सी है। ओके, अभी जरूरी नहीं इसके अंदर जो नंबर 1 पे वो इंडिया की टॉप 50 कंपनी है, आज का डे के परफॉर्मेंस के हिसाब से वो लोग 1 2 3 4 अरेंज किए गए। ऐसे तो इंडिया की नंबर 1 कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, और नंबर 2 टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, नंबर 3 HDFC है, ठीक है, बोथ HDFC ट्विंस, HDFC बैंक एंड HDFC लिमिटेड, देन कम इन्फोसिस, देन कम ICICI बैंक, देन कम देयर इज अ लाइन। ओके, पर इसके अंदर जो अरेंज किए वो डेली आज के परफॉर्मेंस के हिसाब से अरेंज किए। तो टॉप 50 कंपनीज अगर तुमको जानना है तो तुम इसके अंदर जाके जान सकते हो। निफ्टी बैंक मीन वॉच इंडिया की, देखो बहुत सारे बैंक्स है अपने बोईसर पालघर में, तुम देखोगे कम से कम 20-25 बैंक है, बोईसर में 20-25 अलग अलग, पर बेस्ट बैंक कौन से है जिनके ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, तो उन्होंने तुम्हारे लिए निफ्टी बैंक बना के रखा है। इसके अंदर तुम जाओगे तुमको इंडिया के टॉप बेस्ट बैंक्स दिखेंगे। देन इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन मिड कैप कंपनीज, बेस्ट मिड कैप, तो वहां पे देखो क्या दिखा है, निफ्टी मिड कैप 100, इसके अंदर तुमको इंडिया की बेस्ट मिड कैप टॉप 100 कंपनीज मिलेगी जिसके ऊपर तुम इन्वेस्ट कर सकते हो। ये इन्होंने ऐसे ही नहीं डिसाइड कर लिया कि ये इंडिया की बेस्ट 100 मिड कैप, उन्होंने बहुत सारे पैरामीटर्स रहते हैं। When a company fulfills all those parameters, then only a company is able to make its place in this Nifty mid cap 100 segment. Okay, then there is Nifty small cap. Okay, तुमको पता रहेगा लार्ज कैप कंपनी कौन सी होती है, which has a market capitalization of more than 50,000 crores. It's a large cap company. मिड कैप कौन सी होती है, जिसका 10,000 to 40-50,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, इट्स अ मिड कैप कंपनी। जो 10,000 से 5,000 करोड़ के नीचे जो कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, इट्स अ स्मॉल कैप कंपनी। ठीक है, तो स्मॉल कैप कंपनी थोड़ी रिस्की होती है, मिड कैप आर ओके एंड लार्ज कैप आर सेफेस्ट, क्योंकि वो कंपनियां वेल एस्टैब्लिश्ड होती है। ठीक है, तो लार्ज कैप आर सेफेस्ट टू इन्वेस्ट, ब्लू चिप कंपनी जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये आगे निफ्टी, फिर ना अपन देखो इसके अंदर आते हैं, नीचे नीचे स्क्रॉल करोगे ना तो सेक्टोरियल इंडेक्सेस दिखेंगे तुम्हें। ठीक है, सेक्टोरियल इंडेक्सेस। ठीक है, तो मेरे को आप बता सकते हो पहला सेक्टोरियल इंडेक्सेस तुमको क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो, ओके। द नेक्स्ट वन निफ्टी आईटी। आईटी, तो ये दीज आर द डिफरेंट सेक्टर्स। ठीक है, जैसे ऑटो एक सेक्टर हो गया, आईटी एक सेक्टर हो गया, फार्मा एक सेक्टर हो गया, फिर अपना फाइनेंस वाला एक सेक्टर हो गया। ठीक है, कमोडिटी, तो देयर आर वेरियस सेक्टर्स, रियलिटी एक सेक्टर हो गया, निफ्टी वो एंटर्ड मीडिया एक सेक्टर हो गया। दीज आर द डिफरेंट सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। ठीक है, अब तुम्हारा पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए, हर एक सेक्टर से यू शुड हैव एटलीस्ट वन स्टॉक, हर एक सेक्टर से यू शुड हैव एटलीस्ट वन स्टॉक इन योर पोर्टफोलियो। निफ्टी मेटल होना चाहिए तुम्हारे पास, एक मेटल की कंपनी होनी चाहिए, एक फार्मा की कंपनी होनी चाहिए, एक एफएमसीजी की कंपनी होनी चाहिए, एक ऑटो की होनी चाहिए। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए तुम्हारा। ठीक है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, कि अगर कभी सपोज बैंक्स परफॉर्म नहीं कर रहे तो आईटी कंपनीज तुमको रिटर्न दे देगी। जैसे कभी कोरोना का टाइम चालू है तो बैंक्स अभी थोड़े डाउन चल रहे हैं क्योंकि एनपीए का प्रॉब्लम हो सकता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, लोग लोन अगर बैंक को नहीं देंगे तो बैंक फिर बहुत बुरा हिट पा सकता है। बट द आईटी कंपनीज आर करंटली आउट परफॉर्मिंग द मार्केट। तो आईटी कंपनीज तुमको, जो बैंक्स का जो लॉस हो रहा है वो आईटी कंपनी तुमको पूरा लॉस कवर करा के तुमको ओवरऑल प्रॉफिट में रख रही है। इसके लिए पोर्टफोलियो शुड बी हेज्ड आउट, योर पोर्टफोलियो शुड बी डाइवर्सिफाइड, जिसकी वजह से तुमको कभी लॉस
loss there and you will get a CAGR, nice CAGR on your portfolio. Okay, तो अभी देखो ये अभी तुमको बताता मैं अभी कैसे निफ्टी ऑटो मतलब क्या, बेस्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर कंपनी कौन सी है तुमको इंडिया की जाना है। देखो ऑटो की कंपनियां देश में 200 से 400 कंपनियां है ऑटो कंपनीज, पर हमको जानना है कि बेस्ट ऑटो कंपनी कौन सा है। अभी सर आपने बोला कि ये हर एक सेक्टर का एक स्टॉक हमारे पास होना चाहिए, पर बेस्ट स्टॉक कौन सा है। निफ्टी ऑटो में मैं किस में लगाऊं, आप गूगल करोगे तो 400-500 कंपनी आपको ऑटो की मिलेगी, आईटी की आपको 400-500 कंपनियां मिलेगी, फार्मा के आपको 100-200 कंपनियां मिलेगी, एफएमसीजी की 400-500। लगाऊं किसमें पैसा मैं, पता कैसे चलेगा, कोई फिल्टर है क्या। इंस्टा के जमाने में जी रहे हम, फिल्टर जरूरी है भाई। तो देखो ये तुम्हारे लिए एनएससी ने फिल्टर लगा कर रखा है, निफ्टी ऑटो के अंदर हम जाते हैं, नहीं चलो तुम्हारे लिए ना अपन जाते हैं निफ्टी एफएमसीजी के अंदर जाते हैं, ये नाम तुमने सुना हुआ रहेगा निफ्टी। निफ्टी एफएमसीजी के अंदर में क्या, उसके अंदर हम जाएंगे स्टॉक्स को सिलेक्ट करेंगे अपन, वी सिलेक्टेड व्हाट, स्टॉक। अब देखो तुमको कौन सा नाम दिख रहा है, कौन सा नाम दिख रहा है निफ्टी एफएमसीजी के स्टॉक के अंदर, आईटीसी। यस आईटीसी। फिर गोदरेज कंज्यूमर, नेक्स्ट यूनाइटेड स्पिरिट, ओके यूनाइटेड स्पिरिट्स, फिर नेक्स्ट ब्रिटानिया। देखो ये थोड़े नाम तुम सुन सकते हो, ब्रिटानिया तुमने सुना होगा, आईटीसी सुना होगा, ये गर्ल्स लोग का फेवरेट चीज बना था आईटीसी, एंगेज, ठीक है, क्या नहीं बना था आईटीसी, मेरा तो हॉट फेवरेट स्टॉक, ठीक है। आईटीसी क्या नहीं बनाता वो कंपनी, उसके 5 स्टार 7 स्टार होटल्स है, सब सेगमेंट में हो, सैवलॉन से लेके सब जगह आईटीसी, आशीर्वाद आटा से सब जगह हो, ठीक है। फिर अपना ब्रिटानिया आ गया, फिर ये यूनाइटेड स्पिरिट्स, तुमको पता है क्या है यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्यूरीज। ये देखो यहाँ पे तुमको कितने कंपनियां टोटल दिख रही है, 10 आई थिंक, कितने दिख रही है तुमको, काउंट करो कितने टोटल, 10 है। क्या इंडिकेट कर रही है 10, मतलब एफएमसीजी की देश में 400-500 कंपनी है, बट दीज आर द बेस्ट 10 यू कुड बेट ऑन। मेरी बात समझ रहे क्या, ये 10 में अगर तुम पैसा लगाओगे नहीं डूबेगा पैसा, ये 10 में अगर पैसा लगाओगे तुम्हारा पैसा नहीं डूबेगा। फिल्टर मिल गया ना मेरे को, 400-500 से मेरे को अभी शॉर्ट लिस्ट कर दिया मैंने कि ये 10 में मेरे को लगाना, अब ये 10 में से कौन सा लगाना, अब ये एक इजी टास्क हो गया। ओके, ये 10 में से अभी मैं ढूंढूंगा कि कौन सा ये 10 में से अंडर वैल्यूड है। ओके, कौन सा ये 10 में से करंटली क्या है, अंडर वैल्यूड है, और उस पर फिर मैं पैसा लगाऊंगा। मेरी बात समझा। और वो कंपनी में सबसे पहली बात दम होना चाहिए, वो कंपनी में बहुत उसके प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं मार्केट में, बहुत सही वो प्रोडक्ट चल रहा है, पोटेंशियल तुमको लग रहा है कंपनी के अंदर, पर तुमको लग रहा है कि यार उसका भाव ना बहुत कम है, ठीक है, जितना भाव होना चाहिए उसका भाव नहीं, कॉमन सेंस, अरे वो सब फंडामेंटल सब साइड में रखो, जस्ट कॉमन सेंस। तुमको मैं कंपनी के बारे में बताता हूँ, शॉर्ट कंपनी, ठीक है, यूनाइटेड स्पिरिट्स के बारे में तुमको बताता हूँ। ओके, आईटीसी तो तुमने सुना रहेगा इंस्टा पे और जहां पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, व्हाट्सएप जोक्स सब जगह की, ये चलता ही नहीं, वो चलेगा जिस दिन आईटीसी चलेगा ना, उस दिन मार्केट में सिर्फ यही चलेगा, ठीक है। आईटीसी इज द बिग बॉस ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट। एक्चुअल भी तुमको इसके अंदर दिख रहा होगा, हिंदुस्तान, ऐसा कौन सा घर है देश का जिसके घर पे एक्चुअल का प्रोडक्ट नहीं, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इट्स अ ब्लू चिप कंपनी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके अंदर लगाओ ना तुम पैसा, तुमको जो भी बोलता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा डूबा, उसको बोलने का ना, एचयूएल में लगाया था क्या पैसा, रिलायंस में लगाया था क्या, बजाज फाइनेंस में पैसा इन्वेस्ट किया था क्या, टीसीएस में इन्वेस्ट किया था क्या, आईसीआईसीआई बैंक में किया था क्या इन्वेस्ट, नहीं करेंगे, ठीक है। ये तुम्हारे लिए उन्होंने ये इन 10 में से किसी में भी इन्वेस्ट किया था क्या आपने, ये एफएमसीजी में से नहीं, वो चूज करेंगे ऐसा कंपनी जिसका दुनिया में किसी ने नाम नहीं सुना, और वो बहुत ही छोटी कंपनी रहेगी, 10-20 रुपए की रहेगी, उसमें लगाएंगे, फिर वो पैसा नीचे आ जाएगा और वो ही हो जाएगा। ये एक चीज हमेशा याद रखना, बुरे वक्त में बड़ी कंपनी और बड़ी हो जाती है और छोटी कंपनी बंद हो जाती है, ठीक है। बड़े प्लेयर ही सरवाइव कर जाते हैं बड़े कंपनी में। तुमने देखा रहेगा पिछले साल रिलायंस ने कितना शॉपिंग किया था, वो सीधा कंपनियां खरीद रहा था, इधर लोग घर का राशन भरने का पैसा नहीं, ठीक है। तो दैट्स द थिंग, वो बड़ी कंपनियां बुरे वक्त में और बड़ी हो जाती है, दे विल ऑलवेज कीप यू सेफ, रिटर्न थोड़े कम देंगे पर पैसा पक्का रिटर्न बना के देंगे तुमको, ठीक है। तो ये हो गया। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स का मैं तुमको बता रहा हूँ, तुमको पता है देश में अगर तुम बियर छोड़ दो तो सारे अल्कोहल ब्रांड्स ये यूनाइटेड स्पिरिट बनाता, ठीक है। और 3-4 साल हो गया ये 500 से 550, 600 के अंदर ही घूम रहा था। और ये कंपनी का तुम कोई भी प्रोडक्ट्स तुम ले लो अल्कोहल के,
सारे प्रोडक्ट्स ये बनाता है। और यूथ जो है ये 18 इयर्स का, हर बार लोग जैसे एज क्रॉस करते हैं बहुत सारे लोग एंटर करते हैं और इनकी आबादी कम नहीं होगी, बढ़ती है। ठीक है, ये दिस अ फैक्ट। ये लोग के ये जो अल्कोहल, तो इसका प्राइस कम था और ब्रांड्स इसके जबरदस्त है। तो देखो आज क्या हो गया, एक साल पिछले 6 महीने में ये स्टॉक 500 से 900 से ऊपर चले गए। फ्रॉम 500 टू 550 कहां चले गए, 900 के ऊपर। 70-80% रिटर्न दे दिया ये स्टॉक एक साथ। ठीक है, फिर तुम्हारे पास ये कितने सारे इसके अंदर, जुबिलेंट फूडवर्क्स एक स्टॉक, डोमिनोज का नाम है जुबिलेंट फूडवर्क। ठीक है, पिछले साल लॉकडाउन में पिज्जा हट बंद था, केएफसी बंद था, मैकडी बंद था, एक ही चल रहा था, डोमिनोज होम डिलीवरी। कॉमन सेंस लगाओ, इस पे पैसा लगाओगे तुम्हारा पैसा नहीं डूबेगा, क्योंकि इनका डाइनिंग तो है ही, होम डिलीवरी में किंग है डोमिनोज। ओके, ये अपने इधर भी होम डिलीवरी में किंग है डोमिनोज। तो इसके अंदर तुम अगर लगाओगे, करंट जनरेशन पिज्जा ये सब पसंद है उनको, तो इस पे लगाओगे। देखो हमेशा ये अपने मार्केट अगर हाई पे है तो डोमिनोज भी ऊपर रहेगा, जुबिलेंट फूडवर्क। यू कुड बेट ऑन दिस कंपनी, तुम्हारे फिल्टर में लगेगी ये टॉप 10 में मैं लगाऊंगा तो मेरा फिर तुम करंट अपना हिसाब से तुम देखो, तुमको आईटीसी में जाना है, तुमको ब्रिटानिया देखना है, ब्रिटानिया के प्रोडक्ट्स का रिसर्च करना, मजा आ जाएगा तुमको। डाबर है इसके अंदर, डाबर हमको क्या लगता है कि ये डाबर हनी बेचता होगा, डाबर च्यवनप्राश बेचता होगा क्या? गूगल करो सिर्फ डाबर कंपनी के प्रोडक्ट्स, तुम इंप्रेस हो जाओगे। कितने प्रोडक्ट्स है डाबर के, कितने प्रोडक्ट्स है। ठीक है, ये ऐसे ही नहीं, ये टॉप 10 कंपनी में डाबर को जगह दे दिया गया। ओके, देयर आर सेवरल पैरामीटर जो ये फुलफिल करते हैं, जिसकी वजह से ये लोग ये निफ्टी एफएमसीजी में, ये टॉप एफएमसीजी कंपनी में जगह मिली। तो इसमें से तुम अच्छा अंडर वैल्यूड कंपनी, अगर मकसूद सर तुमको सिखा रहे कि क्या रेशियोज है, पीई रेशियो अभी सर तुमको सिखाएंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू सर विल टीच यू। So upon that you could take a wise judgment कि ये 10 में से सिलेक्ट करो। हम बैक आते हैं अभी। ठीक है, निफ्टी ऑटो, तो यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा, बेस्ट ऑटोमोबाइल्स कंपनीज ऑफ इंडिया। तो निफ्टी ऑटो के अंदर जाएंगे, फिर किस में जाते हैं तुमको पता है, स्टॉक्स में जाएंगे। ठीक है, जैसे ही तुम स्टॉक्स में जाओगे यू विल गेट दी बेस्ट ऑटो कंपनीज ऑफ इंडिया। फिल्टर है ये तुम्हारे लिए, देश में 400-500 ऑटो कंपनी से दीज आर द बेस्ट 10-12 ऑटो कंपनी जिसपे तुम यू कुड इन्वेस्ट योर मनी और तुम्हारा पैसा नहीं डूबेगा। ओके, डोंट वरी, इन्वेस्ट करो लॉन्ग टर्म के लिए, तुम्हारा पैसा आराम से बनेगा। ये 10-12 में से जिसमें भी पैसा लगाओ। ओके, ये हो गया तुम्हारे लिए बेस्ट चीज है। तुम घर पे ये अभी तुम ना रिसर्च कर सकते हो ऑटो कंपनी, तो ये 12 पे रिसर्च करो, गूगल करो ना यार, यूज योर यूट्यूब, यूज गूगल, एंड सबसे बेस्ट, the best advisor with you, use Maqsood sir. You could also take my help as well. Okay, you could invest on this company. Okay, फिर अपन बैक आते हैं। I hope you have got it. किसी का तो माइक ऑन है, switch off your mic. Okay, फिर next is निफ्टी फार्मा आपको मिलेगा, निफ्टी मेटल मिलेगा, निफ्टी मीडिया मिलेगा आपको। ठीक है, हर एक सेक्टर का तुम बेस्ट इस पे रिसर्च कर सकते हो और इस पे तुम एक बेस्ट जो भी तुमको नॉलेज अभी दिया जा रहा है उसके ऊपर कुछ सिलेक्ट बेस्ट कंपनी और तुम अपना क्या बिल्ड कर सकते हो, पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो। जैसे देखो निफ्टी बैंक में आते हैं अपन, निफ्टी बैंक ये देश की जान है, बिना बैंक्स के कंट्री वर्क नहीं कर सकता, इतना याद रखना। तुमको अगर तुम सपोज अभी तुम यंगस्टर्स हो, तुम अर्न करोगे तो तुम क्या चाहोगे कि मेरा एक घर हो, मेरी एक कार हो, ठीक है, मेरा एक स्मार्ट आईफोन हो या कुछ भी। ठीक है, एवरीथिंग बैंक विल प्रोवाइड यू थ्रू लोन। तुमको घर चाहिए, तुम जाओगे बैंक के पास ही लोन लेने। तुमको बिजनेस सेटअप करना है 50 लाख 1 करोड़ का, तुम उसके लिए भी लोन लेने बैंक के पास ही जाओगे। ठीक है, तुमको जो भी एकदम बेसिक रीजन बता रहा हूं मैं तुमको कार लेना, बैंक ही तुमको प्रोवाइड करके देना, इनके बगैर इकोनॉमी नहीं चलती। ठीक है, निफ्टी बैंक शुड बी इन योर पोर्टफोलियो। कुछ नहीं समझता आईसीआईसीआई बैंक खरीदो, बिंदास। कुछ नहीं समझता आईसीआईसीआई बैंक खरीदो, अरे कुछ भी नहीं समझता एसबीआई खरीदो। ठीक है, बट स्टे इन्वेस्टेड। क्या तुम एक शेयर मार्केट में खरीद सकते हो क्या? हाँ। कुछ नहीं समझता, मैं बताता तुमको, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खरीदो। ये मल्टी बैगर है, ये फ्यूचर का एचडीएफसी बैंक है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 45-50 रुपए का आता है, इट्स इन योर बजट। ठीक है, मैंने पिछले साल मेरे स्टूडेंट्स को बोला था मदरसन सुमी, क्या कंपनी है मदरसन सुमी, निफ्टी ऑटो में आती है। तुमको पता है, तुम बीएमडब्ल्यू ले लो, तुम ऑडी ले लो, तुम रॉयल्स रॉयस ले लो, तुम मारुति सुजुकी ले लो, तुम टाटा मोटर ले लो, तुम फोर्ड ले लो, फोक्सवैगन ले लो, जिसको लेना है लो। हर कंपनी मदरसन सुमी से ही स्पेयर पार्ट्स खरीदती।
ठीक है, मतलब रोड पे कोई भी गाड़ी बिकी, मदरसन सुमी इज द कंपनी इज गोइंग टू अर्न। ठीक है, इट्स एक्सीलेंट कंपनी। मैंने मकसूद सर को भी सजेस्ट किया था और मैंने 80-90 रुपीज में मदरसन सुमी को कैच किया था और मैंने सबको एडवाइस किया था, दिस इज द कंपनी, अंडर वैल्यूड है ये कंपनी की 90 रुपए की औकात नहीं है, ये कंपनी बहुत ऊपर जाएगा। और देखो आज वो 200 प्लस है और मैं लिख के देता हूँ मदरसन 300 के भी ऊपर जाएगा, 400 के ऊपर जाएगा, 500 के ऊपर जाएगा। स्टे इन्वेस्टेड, ट्रस्ट इन द कंपनी। ऑटो सेक्टर बूम करने वाला है क्योंकि पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट आने वाला है और फिर से सारी कंपनियां जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगी सब फिर से किसके पास जाएंगे, मदरसन सुमी के पास ही आएंगे फिर से स्पेयर पार्ट्स लेके, स्टेयरिंग, सीट कवर, अपना विंडोज, डोर, जो भी है सारे सारे तुम्हारा जो भी रियर गार्ड, मड गार्ड, सब कुछ तुमको मदरसन सुमी प्रोवाइड करके देगा। तुम्हारा बोनट सब स्पेयर पार्ट्स किंग है, उससे बड़ा कोई भी स्पेयर पार्ट कंपनी नहीं है ऑटो स्पेयर पार्ट्स। ठीक है, तो यू कुड गो फॉर मदरसन सुमी। देखो निफ्टी बैंक के अंदर अपन आते हैं, सूरज सर, निफ्टी बैंक स्टॉक्स के अंदर अगर तुम जाओगे देखो तुमको इंडिया के टॉप 12 बैंक मिल जाएंगे। हमको प्राउड होना चाहिए हमारे पास HDFC बैंक है, हमको प्राउड होना चाहिए हमारे इंडिया के पास ICICI बैंक है। वैसे तो हमको पूरे इंडिया में प्राउड है, पर दिस टू आर वर्ल्ड में इनका नाम है टॉप बैंक्स में, HDFC एंड ICICI, कोटक महिंद्रा, SBI, these are the banks you could bet on blindly. These are the thing, you invest नो यार, इनके रिटर्न जाके तुम देखोगे ना, चलो रिटर्न देखते हैं अपन। ठीक है, एक ICICI बैंक का रिटर्न देखते हैं अपन, ICICI बैंक के अंदर जाते हैं। ओके सूरज सर, ICICI बैंक के अंदर जाते, देखो उसके अंदर तुम जाओगे तो तुमको दिख रहा है रिटर्न कितना दिख रहा है सूरज सर, एनुअल रिटर्न ICICI बैंक का 1 ईयर रिटर्न रहेगा देखो 6 मंथ उसके अंदर आता है रिटर्न। अगर तुम ICICI बैंक का रिटर्न चेक करोगे, इट इज समवॉट 60 to 70% रिटर्न एक साल का। ICICI बैंक एक साल का रिटर्न 60 to 70% रिटर्न आपको मिल जाएगा ICICI बैंक। तो दिस आर द बेस्ट बैंक्स। तो तुम ऐसा अपना पोर्टफोलियो सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे कि तुमको चाहिए कि मैं कैसा पोर्टफोलियो सिलेक्ट करूं, पोर्टफोलियो मींस क्या, तुम कौन से बिजनेसेस ओन करना चाहते हो। ठीक है, तुम कौन से बिजनेस, अगर तुम ओनर होते, तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा होता, तुम कौन सा बिजनेस खोलते। तुम एक ऑटो बिजनेस खोलते क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट है, जितने भी गाड़ियां रोड पे सब कुछ रिप्लेस होने वाला है विद इलेक्ट्रिक व्हीकल। मतलब कितने गाड़ियां मार्केट में आना, कितना बड़ा मार्केट है, यू शुड बी इन दैट सेक्टर। आज देखो ओला भी अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल उतारा है, हर किसी को इलेक्ट्रिक व्हीकल माना है। तुमको मैं एक बात बताऊं, रिलायंस का प्लान क्या है, रिलायंस का दैट रिलायंस के मुकेश अंबानी के 3 बच्चे, देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट है, 3 बच्चे, एक आनंद है, एक आकाश है और कौन तीसरी कौन है, ईशा अंबानी। ठीक है, मेरे को सबसे बेस्ट ईशा अंबानी लगती है, उसने पूरा रिटेल बिजनेस रिलायंस का अकेले, ईशा अंबानी, ये दो वन जिसने रिटेल बिजनेस अपने रिलायंस को, एम्पायर को खड़ा करके दिया। उनका क्या प्लानिंग है पता है, अपना पेट्रोल पंप्स रिलायंस का भी 1500 है देश में, हम 6000 पेट्रोल पंप्स इंडिया में करेंगे रिलायंस, 1500 से कितना कर देंगे 6000। और ये सब में ना इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन रहेगा। ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगा वो गाड़ी को क्या करेगा, उधर चार्जिंग स्टेशन है उधर चार्ज करेगा। अब एक नॉर्मल मोबाइल को चार्ज होने को कितना टाइम लगता है तुमको पता ही, तो एक कार को कितना टाइम लगेगा, 1 आवर लगेगा एटलीस्ट चार्ज होने को फुल्ली। तो तब तक वो क्या करेंगे, वो कार के अंदर शायद एक फैमिली होगा, बच्चे रहेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, हमारे रिलायंस के पेट्रोल पंप पर हम ना उनके लिए फूड हब टाइप खोल दे। ठीक है, जैसे डोमिनोज टाइप अपना खुद का रिलायंस अपना एक ब्रांड लेके आने वाला है, वहां पर रिलायंस उनको बर्गर्स, पिज्जाज, मिल्क शेक्स ये सब बेचने वाला है, कोक एंड ऑल जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स ये सब बेचने वाला है। तो देख रहे हो तुम उनका, ताकि बच्चे उधर चार्जिंग रहेगा और फिर उधर जाके वो लोग वो फ्रेंचाइजी जो भी रिलायंस अपना उधर फूड हब उतारने वाला वो उधर जाके वो खाएंगे। लुक एट देयर प्लान। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्ले हर किसी को खेलना है, तो अपने पास एक ऑटो होना चाहिए। फार्मा, जिस तरीके से हमारा हेल्थ डिटेरियोरेट करके जा रहा है, वी शुड हैव अ फार्मा कंपनी एज वेल, नाइस फार्मा कंपनी। अगर मैं तुमको एक फार्मा कंपनी सजेस्ट करूं जो कि बहुत जबरदस्त जाएगा, दैट इज ऑरोबिंदो फार्मा, एक्सीलेंट इसका फ्यूचर है, ये जाएगा। और एक है बायोकॉन, बायोकॉन का मोनोपोली है। ठीक है, ऑलवेज सिलेक्ट मोनोपोली स्टॉक्स। ठीक है, जिसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, क्योंकि इधर तुमको पक्का, जैसे IRCTC, नो मोनोपोली, नो मोनोपोली, उसका सिर्फ अपसाइड है। ये जितने भी न्यूज आते हैं टेम्पररी न्यूज है ये सारे। ठीक है, IRCTC सिर्फ उसका एक ही वे, अप वे, ऊपर ही जाएगा IRCTC, मोनोपोली। तो सिलेक्ट दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स। IT लोगे तो सिलेक्ट इन्फोसिस, माय हॉट फेवरेट,
यू कुड गो फॉर इन्फोसिस, एक आईटी कंपनी जरूरी है, ये सेंचुरी आईटी का होने वाला है, दिस सेंचुरी बिलोंग्स टू आईटी, ठीक है, ये आईटी कंपनियां का ही फ्यूचर में राज वाला। अभी तुम भी देखो कितना टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो गया, अपन नहीं जी सकते बिना मोबाइल रिचार्ज। मुझे रिचार्ज से याद आया, यू शुड हैव अ भारती एयरटेल इन योर पोर्टफोलियो, ठीक है, इंडिया के टॉप 10 में आती है भारती एयरटेल, जियो का इकलौता कॉम्पिटिटर ऐसा हम बोल सकते हैं, ऑलमोस्ट वोडाफोन आइडिया इज, अपन उसको कभी भी बंद हो सकता है, वो इतना स्ट्रॉन्ग प्ले हम नहीं बेट कर सकते, उसमें नहीं इन्वेस्ट कर सकते, ठीक है। तो यू शुड हैव अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। अब ये पोर्टफोलियो के लिए क्या चाहिए तुमको, यू फर्स्ट नीड अ डीमैट अकाउंट। तुम्हारे पास डीमैट अकाउंट ही नहीं है तो तुम ना किसी शेयर को खरीद सकते हो, ना तुम किसी शेयर को बेच सकते हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। यू नीड फर्स्ट ऑफ व्हाट, अ डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट इज इक्वल टू व्हाट, योर बैंक अकाउंट। बैंक में तुम्हारे पैसे रहते हैं, बैंक मैनेजेस योर मनी। इन डीमैट अकाउंट योर शेयर्स आर बीइंग मैनेज्ड। और हमारे पास अगर तुम खोलोगे, आई एम द ऑफिशियल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ फैकल्टी इन डीप डिग्री कॉलेज बोईसर, ठीक है, एंड आई एम आल्सो आई रन माय क्लासेस, कॉमर्स, प्योर कॉमर्स क्लासेस, ठीक है, नायक क्लासेस इन बोईसर, एंड देन I am an official business partner of Motilal Oswal Services Financial Limited. It's a company which is in existence till from 1987. 34 years हो गए ये कंपनी को मार्केट में। It is a well established company listed in stock exchanges, ठीक है, स्टॉक मार्केट में तुमको मोतीलाल सिक्योरिटीज का स्टॉक मिल जाएगा, ठीक है। हम लोग इनके ऑफिशियल बिजनेस पार्टनर है। आप हमारे इधर डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी, पहली बात, अगर आप हमारे इधर डीमैट अकाउंट खोलोगे, वी आर फुल फ्लेज्ड ब्रोकर, ठीक है। आपको हमारे इधर म्यूचुअल फंड्स में अगर आपको इन्वेस्ट करना है वो मिल जाएगा। अगर आपको इंश्योरेंस आपका फ्यूचर में लेना है, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, वो सब भी आप हमारे पास ले सकते हो। बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई मेरे पास 5 लाख रुपए, आप ये मेरा 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके दो वेरियस कंपनीज में और मेरे को रिटर्न्स जनरेट करके दो, वो भी हम करते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज हमारे पास है, ठीक है। देन वी डू इंट्राडे ट्रेडिंग हमारे पास आप कर सकते हो, तो ऑब्वियस है, ठीक है। प्लस आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 5 से 10 साल का मैं फ्री करवा के दे दूंगा। आप कोई भी ब्रोकर के पास जाओ, कहां पे भी आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 5 साल का कोई भी फ्री नहीं करके देगा, आई बेट। कोई फ्री करके नहीं देगा तुमको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा तुमको फर्स्ट ईयर का जो भी 400-500 नहीं लेंगे, पर अगले साल से 500-600 दो हमको, प्लस डीपी चार्जेस मैं आपको नहीं लगाऊंगा, ठीक है। तो ये आपको हम बेनिफिट देंगे। प्लस यू विल गेट, आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आपको बेनिफिट चाहिए, मतलब आपको दिन का रोज 500 to 1000 रुपीज डेली कमाना है विद इन 1 आवर, गारंटीड आपको मैं रोज निकाल के दूंगा, गारंटीड, ठीक है। अभी मकसूद सर के साथ भी हम कुछ दिन से, अभी हम मकसूद सर के लिए भी हम ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है। तो वी आर, आई एम गोइंग टू ट्रेड फॉर मकसूद सर। आपको मकसूद सर खुद अपना फीडबैक देंगे हमारा आपको, ओके। ऐसे ही मकसूद सर ने हम पे ट्रस्ट नहीं किया, सो ही विल गिव आवर फीडबैक टू यू कि डेली 500 रुपीज टू 1000 रुपीज। मेरे इधर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के बच्चे जो ट्रेड करते हैं और दिन का 1000 रुपीज कॉन्फिडेंटली निकाल लेते हैं विद इन 1 ईयर। गर्ल्स के अंदर मैंने ये ट्रेंड एकदम बूमिंग तरीके से देखा है। गर्ल्स एकदम फेवर कर रही है ये चीज कि भाई मेरे को किधर भी नहीं जाना पड़ रहा है, मेरे को ना ऑफिस आने जाने का टेंशन, ना कुछ है, मैं मेरा घर पे आई वुड एंजॉय माय लाइफ, शॉपिंग कर सकता हूं, जो भी है अपना लाइफ हम एंजॉय कर सकते हैं। और 1-2 आवर्स के अंदर अपन मैक्स टू मैक्स अपन 1000 रुपीज तो 1500-2000 रुपीज डेली का अर्न करेंगे आराम से। और क्या चाहिए, 2000 रुपीज डेली का इज 40,000 मंथली, ओके, बिना ओनली वर्किंग बाय 1 आवर, दैट्स इट, 1 to 1.5 आवर गारंटीड रिटर्न है। देखिए आई एम ऑलमोस्ट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मैं कभी भी मेरा पैसा वहां पे नहीं लगाता जहां पे 1 पैसे का भी लॉस हो। अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा कि सर आप कैसे बोल रहे हो, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। यार इन बिजनेस मेरा खुद का पोर्टफोलियो आराम से 25 लाख प्लस है इन्वेस्टेड पोर्टफोलियो, और ट्रेडिंग में मैं दिन का आराम से 4000 to 5000 आराम से आए अर्न आउट डेली आराम से। सो आई हैव नो वर्क प्रेशर, ओके, विद इन 1 आवर आई अर्न आराम से 4500। और जैसे जैसे तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जैसे जैसे तुम इसमें करोगे 6 years 7 years 10 years, जैसे जैसे वो होते जाएंगे तुम्हारा, और वो तुम और सीखोगे, ओके, यू विल ग्रो 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 एंड ग्रो, पीछे नहीं रहेगा, आप आगे ही जाओगे इसमें, और तुम सीखोगे और इन्वॉल्व होगे इसमें, और तुम अच्छा और अर्न कर पाओगे। Okay, you could opt this as your career, side business, side earning, second earning भी तुम इसको अपना चूज कर सकते हो,
ओके जैसे कि मेरे पास अभी कितने सारे क्लाइंट्स हैं, 35 इयर्स हो गए उनको, 40 इयर्स हो गए उनको, दे ओपन अ डीमैट विथ मी, वो बोलते हैं सर आप हमारे लिए ट्रेड करो, 25,000 रुपीज डीमैट में आपको रखना रहता है, और फिर हम आपके लिए पूरा ट्रेड करवा के देंगे, डेली का 1,000 रुपीज, 500 to 1,000 रुपीज हम आपको निकाल के देंगे, आप सिर्फ 25,000, आप ऐसा सोचो कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, यू कीप 25,000 इन अ, देखो इट्स नॉट कंपल्सरी टू यू, I will open a demat account for you all absolutely free so that you could explore the knowledge. ठीक है, आप ये डीमैट अकाउंट खोलो, आप जब देखो स्विमिंग कैसे करना है आप कितना भी बुक में सीख लो, जब तक तुम स्विमिंग पूल पे कूदोगे नहीं, ठीक है, जब तक तुम स्विमिंग, तब तक तुम स्विमिंग करना नहीं सीख सकते, कुछ भी कर लो तो जब तक तुम्हारा एक डीमैट खुलेगा नहीं, ओके, तो आप कैसे सीखोगे कि कैसे बाय करते हैं, कैसे, वो डीमैट के अंदर जाके तुम एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। हमारे इधर खोलोगे तो वी विल, एज यू आर स्टूडेंट्स, ओके, यू आर नॉट अर्निंग एट प्रेजेंट, so for that only reason I am making the annual maintenance charges सीधा 5 साल के लिए फ्लैट फ्री, 1 रुपया आपको हमारे इधर देना नहीं है, 1 साल के लिए नहीं, 5 साल के लिए आप कुछ मत दो, पर सीखो, वो डीमैट खोलो, आप सीखो उसके अंदर कितने सेक्टर्स है, आज कौन निफ्टी में टॉप गेनर रहा, कौन लूजर रहा। देखो अब मैं आपको एक ऐप भी बताता हूँ, हमारा एक ऐप एक्सप्लोर करा दो, मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टर, एमओ इन्वेस्टर करके हमारा एक ऐप है, ठीक है, वो जरा ओपन कीजिए, एमओ इन्वेस्टर करके ऐप है, देखो आपको उधर दिख सकता है निफ्टी, सेंसेक्स, रुपी का उधर स्टेटस दिख सकता है, गोल्ड का क्या स्टेटस है आपको वो दिखेगा अपने इधर, ठीक है, फिर आपको इधर दिखेंगे कि कौन टॉप गेनर है, कौन टॉप लूजर है, आपको इधर वॉच लिस्ट दिखेगा, स्टॉक आइडियाज हम लोग रोज देते हैं, ठीक है, हम लोग वी आर अ वेल रिसर्च वेल नोन फॉर्म, आप गूगल भी कर सकते हो, मोतीलाल ओसवाल एंड रामदेव अग्रवाल 1987 से स्टॉक मार्केट में, एंड दे आर द मार्केट स्टॉलवर्ड्स, ठीक है, तो स्टॉक आइडियाज आपको मिलेंगे डेली, और आपको अगर हम भी गाइड ऑल्सो, यो स्टॉक का एक बास्केट बना रहे देख सकते हो तुम, एक एनर्जी, एक आईटी सेक्टर का एक स्टॉक है, एक टाटा कंज्यूमर करके एक एफएमसीजी सेक्टर का एक स्टॉक है, फिर एनर्जी सेक्टर का एक स्टॉक, ऐसा हम एक बास्केट भी बना के देते हैं, आप चाहो तो हम आपको एडवाइस देते हैं कि इनमें इन्वेस्ट करो, यू विल गेट अ handsome returns, okay, so we also guide you, we advise you, we help you, ठीक है, इन योर स्टार्टिंग जर्नी, आप स्टार्ट कर रहे हो, आप गलत हाथों में ना जाओ, वी आर वेरी मच कंसर्न अबाउट दैट, ठीक है, तो आप इसमें आओ, आप अच्छा करियर बनाओ, हमने भी बनाया, आप भी करो, दैट्स व्हाई वी गाइड यू, वी आर हियर टू गाइड यू, वी आर हियर टू मोटिवेट यू, एंड वी आर हियर टू बेसिकली शो यू द राइट पाथ, सो दैट विदाउट टेकिंग एनी मनी, नो कमर्शियल इंटरेस्ट ऑफ अस, मैं बिल्कुल नहीं बोलता आई एम अ कॉलेज ऑन प्लेटफॉर्म, मैं बिल्कुल नहीं बोलता तुम ऐसा डीमैट में पैसे रखो, मैं तुमको 500 1,000 रोज का निकाल के दूंगा, नो नो नो, वी आर हियर सो दैट यू कुड ओपन अ डीमैट अकाउंट, आप वी कुड सो दैट यू कुड एक्सप्लोर द नॉलेज, आप सीखो, 4-5 साल तक हम आपके लिए फ्री करा देते पूरा चीजें, सो दैट यू कुड लर्न, आप ये डीमैट खोलो, यू विल लर्न एंड यू विल ग्रो। देखो ये इसमें आप म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, फंड्स इसमें ऐड करना बहुत इजी है, आप यू कुड स्टार्ट विद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एक 45-50 रुपीज का शेयर है, अच्छा स्टॉक है, यू कुड एक पिज्जा या एक बर्गर कम खाओ भाई, ठीक है, और एक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हमेशा हर महीने दो ऐड करते चलो। मैं पर्सनली, मैंने मेरा फर्स्ट स्टॉक शेयर मार्केट में था आईसीआईसीआई बैंक, मैंने फर्स्ट ऐड किया था, और तभी आईसीआईसीआई बैंक 150-200 रुपए का था, आई वुड पूरा मैं पॉकेट मनी सेव करता, दैट टाइम आई वाज डूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स मेरा करा था मैं, तो हम लोग मुंबई जाते थे तो हमको कैसा पॉकेट मनी घर से मिलता था, तो 200-200 रुपए का मैं हर महीना आईसीआईसीआई बैंक सेव कर करके उसको खरीद के आप मानोगे नहीं, आज मेरे पास 400 शेयर है आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है, तभी स्टार्ट कर दिया था, तो तभी जब मैं 1 शेयर खरीदा, जब 2 शेयर खरीदा, जब 3 शेयर खरीदा, हाँ तब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, तब मैं सीखा, जब मैं लिया शेयर तो मैं सीखा रही है, शेयर ऊपर गया, ये प्राइस नीचे गया, ये क्या हो रहा है, ठीक है, अपन सीखे न्यूज, अच्छा आज ये न्यूज है इसके लिए शेयर ऊपर गया, ओके दीज आर द क्वार्टरली रिजल्ट्स, ठीक है, आज आईसीआईसीआई बैंक का प्रॉफिट जबरदस्त आया, ओके इसके लिए स्टॉक आज जो भी 200 का 220 हो गया, इतना अच्छा क्यों चल रहा है, उसका न्यूज अच्छा है, स्टॉक के भाव क्यों बढ़ते हैं, स्टॉक के भाव तब तक नहीं बढ़ सकते जब तक वो कंपनी प्रॉफिट्स नहीं कमा, ठीक है, प्रॉफिट्स कमा रही है तो ही वो स्टॉक के मार्केट प्राइस बढ़ेगा, एंड यू विल, आपको उधर कैपिटल अप्रिसिएशन भी मिलेगा, एंड यू विल गेट डिविडेंड इनकम फ्रॉम दैट, तो दैट्स द थिंग, ओके, आप जब शेयर लोगे 1 2 3 लोगे, तब आपको रियल समझ में आएगा, वैसे तो आप सुनोगे यू वुड बी लाइक ठीक है अच्छा है हाँ ओके, पर जब आप लोगे तब आपका रियल इंटरेस्ट जगेगा, यू विल स्टार्ट रिसर्चिंग, मजा आएगा तुम्हें,
ठीक है, अभी अपन 6-6 घंटा इंस्टाग्राम पे बैठ जाते यार। ढूंढो ना तुम म्यूचुअल के प्रोडक्ट्स क्या क्या है, मजा आएगा तुमको, लगे वाओ। मैंने वरुण बेवरेजेस ढूंढा था जब मैं छोटा था, आई सर्च वरुण बेवरेज, मतलब ये क्या चीज है यार, निफ्टी एफएमसीजी में यार वरुण बेवरेजेस। तो वहां पे मेरे को पता चला, ओ जितने भी कोल्ड ड्रिंक डिस्ट्रीब्यूटरी वरुण बेवरेजेस के पास इंडिया, द पेप्सी, एक्वाफिना, ठीक है, द जो भी कोल्ड ड्रिंक है, फेंटा, ये सब वरुण बेवरेजेस के पास है। तो मेरे को एक्साइटेड लगा, तो बहुत भारी चीज है यार। ठीक है, फिर मैंने एक चीज नोटिस किया, तुम भी करना, कि विंटर में सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट नीचे रहता है, पर समर में सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट ऊपर चले जाता है, कोल्ड ड्रिंक्स। ठीक है, तो विंटर, अब ये राइट टाइम है वरुण बेवरेजेस को खरीदना। दिसंबर चल रहा है, नीचे है, राइट टाइम अभी खरीदना, क्या पता है, वोल्टास, एसी ब्रांड्स अभी विंटर में ज्यादा नहीं खरीदते। ठीक है, ये लोग अप्रैल और मई में पीक आउट कर जाएंगे। अगर तुम एक भी शेयर वोल्टास का लोगे, अभी एक शेयर तुमको पक्का अप्रैल मई में 200-300 रुपए का फायदा होगा एक शेयर के पीछे। ठीक है, एक शेयर, स्टार्ट विद वन शेयर, ओके, यू विल डेफिनेटली बी बेनिफिटेड। कॉमन सेंस, अप्रैल मई में हम फर्टिलाइजर स्टॉक खरीदेंगे, जुलाई अगस्त में उस पर रिटर्न आ जाएगा, रेनी सीजन आ जाएगा। दिस इज द थिंग, आईआरसीटीसी खरीदो यार, दिसंबर जनवरी में आईआरसीटीसी खरीदो। और तुमको तो अपना ट्रेन का हाल तो पता रहता है अप्रैल में कैसे हम गांव जाते, पूरा मुंबई खाली होता है, सब अपने नेटिव प्लेस जाते, तो वहां पे आईआरसीटीसी तुमको रिटर्न दे देगा पक्का। ठीक है, तो अभी आईआरसीटीसी तुमने देखा ही है, पिछले साल न्यूज में तुमको पता ही रहेगा कैसे भागा है और कैसे रिटर्न्स दिए। तो दिस इज एकदम सिंपल बेसिक चीज है, आराम से अर्न कर सकते हो। फॉर ट्रेडिंग यू नीड एब्सोल्युटली गाइडेंस। ट्रेडिंग में आपको लॉस हो सकता है, ठीक है, पर इन्वेस्टिंग में आपको कभी लॉस नहीं। स्टडी, रिसर्च आउट, डू प्रॉपर। मैंने आपको आज कुछ हेल्प किया कि आप सेक्टर चुनो, वो सेक्टर के बेस्ट स्टॉक्स आप मनी कंट्रोल में उधर पता कर सकते हो, अपने इसमें भी आप पता कर सकते हो, मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टर के ऐप में भी आपको इसमें पूरा प्रॉपर गाइडेंस है। आई विल देयर विथ यू, पूरा मेंटरशिप आपको फ्री रहेगा, आपको पूरा अकाउंट कैसे लॉग इन करना है, क्या किधर आईडी पासवर्ड डालना है, किधर बाय करना है, किधर सेल करना है, ठीक है, कहाँ क्या करना है, हम आपको इधर रिसर्च करके भी डेली देते हैं कि आप आज ये और स्ट्राइक रेशियो भी अच्छा है। ठीक है, 10 में से हमारे 8 से 9 बार कॉल राइट ही जाते हैं, तो आप आराम से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, यू वुड गेट नाइस रिटर्न। ओके नादिक, ठीक है, अब मैंने तो अच्छा खासा बोल दिया, तुम में से किसी को कोई डाउट है? ठीक है, यू कुड आस्क एनी डाउट, कोई तो डाउट होगा। हेलो 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 सर एक ने डाउट पूछा है सर, हाँ। डिड श्रीकांत सर गॉट लॉस इन एनी शेयर, व्हाट डिड ही लर्न, हाउ डू ही अंडरस्टैंड दैट, व्हाट वाज हिज मिस्टेक ही हैज डन? या देखो, बिना आपको आई हैव सेड यू इन बिगिनिंग ओनली, ठीक है, you all are very lucky, I have Maksud sir in beginning, okay, with you, you have I am here, I am here and I will guide you in future. Okay, if you want my assistance I'll definitely assist you. I had lost starting में, जब मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग में जी एंटरटेनमेंट का स्टॉक लिया था। ठीक है, जी एंटरटेनमेंट, आपको पता रहेगा, जी एंटरटेनमेंट, गो एंड चेक आउट द प्राइसेस, तभी ना 450 रुपए का वो स्टॉक हुआ करता था, तब मैंने वो शेयर खरीदा था। मेरे को लगा था ये अच्छी कंपनी है, देश की बहुत ही पुरानी, सबसे पहला, मतलब बहुत ही पुराना मीडिया हाउस है, अच्छा खासा, फिर न्यूज चैनल, जी के बहुत सारे चैनल्स है, जी सिनेमा, जी टीवी एंड ऑल एंड ऑल। तो ये स्टॉक मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा लिया था, क्योंकि देखो हम क्या करते हैं, हम फैमिलियर जो कंपनी से है शुरुआत, हम वो चूज करते हैं। तो मैंने ये स्टॉक लिया, फिर अचानक सडनली ना वो स्टॉक में मैंने तभी अच्छा खासा होल्डिंग कर लिया था, तो वो स्टॉक ना अच्छा खासा, द स्टॉक फेल डाउन इन वन डे, 7-8% वो स्टॉक एक दिन में गिर गया। तो यार आई थॉट ये क्या हो गया, ये गिर कैसे गया? फिर मैंने रिसर्च किया, मैंने न्यूज देखा, ठीक है, जी बिजनेस देखा वहां पे, तो वहां पे मेरे को पता चला, ओके, the shareholders of this company have pledged out 90% of their shares of this company. Pledged out समझते हैं? आप जब लोन लेने जाते हो बैंक, तो बैंक के पास ना आपको कुछ सिक्योरिटी रखना पड़ता है, देन ओनली बैंक प्रोवाइड्स यू द लोन। ओके, तो ये कंपनी के शेयर होल्डर्स ने क्या किया था, ये कंपनी के शेयर होल्डर्स ने अपने कोई प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी गिरवी रखने की जगह इन्होंने अपने कंपनी के शेयर्स गिरवी रख दिए थे बैंक के पास, 90%।
ठीक है, अपने जितने भी शेयर होल्डिंग उसके 90% शेयर्स ये कंपनी के गिरवी थे बैंक के पास, और फिर ये लोग अपना लोन नहीं चुका पाए, ये लोग अपना चैनल पे चैनल खोले जा रहे हैं, ठीक है, ये जी सिनेमा, ये जी अनमोल, ना क्या ये रीजनल लैंग्वेजेस में चैनल खोले जा रहे, इतना बड़ा नाम दिख रहा, बाहर कुछ और है। तब मेरे को पता, फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड लर्निंग दिस फंडामेंटल है। मैं सोचा यार ये अभी इसके इन डेप्थ में जाना पड़ेगा। ये ऐसे ही हम भाई नाम सुन लिया, ओहो हो जी अच्छा नाम है चलो बाय करते, स्टार तो नाम दिखा नहीं, सोनी नाम दिखा नहीं, जी दिख गया यार ये तो बचपन से जी टीवी देख के बड़े हो रहे, चलो इसको खरीदते करके, ये ऐसा नहीं चले। नो नो नो, डीप स्टडीज रिक्वायर्ड हियर। तो वो हिट खाने के बाद मैंने समझा, आपको तो पहले ही हमें इधर बताने को, तब मेरे को समझा ओहो। और आज तुम देख रहे हो एक 4-5 साल में सदा धीरे 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 वो उनका पापों का घड़ा बढ़ता गया, और आज तुमको पता रहेगा शायद जी टीवी बिक गया है, सोनी ने जी टीवी को खरीद लिया है। आई थिंक यू माइट बी अवेयर ऑफ दिस न्यूज। वो नहीं चुका पाया अपना कोई भी लोन, फाइनली वो कंपनी बिक गई। तो अभी जी एंटरटेनमेंट बहुत गंदा नीचे क्रैश हुआ था, 150 120 तक आया था, एंड देन नाउ इट्स नाउ अगेन बैक टू 350 का मार्केट प्राइस। ये सोनी जैसी बड़ी कंपनी ने उसको फिर से खरीद लिया। तो बेसिकली इससे मैंने क्या सीखा, शेयर होल्डर अपने शेयर्स को प्लेज नहीं करना चाहिए, शेयर होल्डर में कैपेसिटी होना चाहिए। दूसरा, वो कंपनी डेट फ्री होना चाहिए, ज्यादा लोन होना नहीं चाहिए, वरना बुरे वक्त में वो हमको क्या प्रॉफिट जनरेट करके डिविडेंड देगी, वो पूरा तो उसका प्रॉफिट इंटरेस्ट पे करने में ही चले जाएगा। और अगर प्रॉफिट कमाया नहीं तो वो इंटरेस्ट कंपनी चुकाएगा कहां से, एसेट बेचने का नौबत आ जाए। देयर आई लर्नड अबाउट डेट इक्विटी रेशियो, जो आपको अभी मकसूद सर ने पढ़ाया, ठीक है। देयर आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट दैट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय। स्टार्टिंग में अभी तुम सुनते हो ना, तुमको लगता है अरे यार दिस इज नॉट दैट, इतना क्रेज नहीं है। देखो तुम्हारे जैसे यूथ ना, यू विल गेट एक्साइटेड विद इंट्राडे ट्रेडिंग। मैंने भी यही किया स्टार्टिंग डेज में ना, इंट्राडे पसंद था मेरे को चाहिए था डेली का अपने को 500-400 आना चाहिए, फुल एकदम रोज का 400-500 आना चाहिए, 250 उड़ाएंगे, 250 फिर से इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। मैं स्टार्टिंग के डेज मेरे 2-4 साल मैंने जब मैं 19 का था तब से मैंने ट्रेडिंग चालू किया, लॉस किया प्रॉफिट किया, लॉस किया प्रॉफिट किया, और नॉर्मली मैंने प्रॉफिट किया कि मेरे अंदर ग्रीड नहीं था। अगर मेरे को कोई ट्रेड पे मैं एंट्री करता 600 आ रहे थे तो मैं 300 पे निकल जाता था, ओके चलेगा, भगवान को थैंक यू बोलने का बहुत है, ठीक है। ओ मैं तो स्टार्टिंग डेज में मैं थोड़ा प्रॉफिट में रहा, वो मेरे लिए बेनिफिशियल था, बट देन आफ्टरवर्ड्स मैंने रियलाइज किया यार इन्वेस्टिंग वाज द राइट थिंग। और मैंने एक एक शेयर से, जो आईसीआईसीआई बैंक शुरुआत में स्टार्ट किया था लेना, वो मेरा आज सबसे हाईएस्ट स्टॉक होल्डिंग में आईसीआईसीआई बैंक में, सबसे हाईएस्ट। वो दैट वन शेयर एक लिया ना, तो अपने आप दूसरे के लिए पैसा जमा हुआ मेरे पास, अपने आप तीसरे के लिए मेरे पास पैसा जमा हुआ, अपने आप मैंने पैसा स्टार्ट जमा किया फॉर बाइंग माय 4th शेयर ऑफ आईसीआई। स्टार्टेड सेविंग, 200 रुपया में सेव करने लग गया, ठीक है। चल चल के जाने लगा, 10 रुपए ऑटो का बचाने लगा, लिटरली दैट टाइम। क्योंकि घर पे मैं बोला मम्मी शेयर खरीदना है, मम्मी बोलेगा व्हाट नॉनसेंस, ठीक है। आज टुडे देयर इज अवेयरनेस, 6-7 इयर्स पहले लोगों को लगता था बच्चों को इससे दूर ही रखना चाहिए। आज भी पेरेंट्स आर नॉट दैट मच एक्साइटेड, बट अवेयरनेस आ गई, तो दे आर स्टार्टेड अलाउइंग देयर किड्स टू स्टडी अबाउट ऑल दिस। Okay, so there that ICICI Bank helped me. That one share, first share of तुम भी देखो, तुम्हारे अंदर भी देखा कौन सा पहला शेयर लो, ये तुम्हारे अंदर भी। जब तुम पहला शेयर लोगे, जब तुम और एक कंपनी में हो, तब तुमको थोड़ा नॉर्मल लगे, ओके यू विल ऑल्सो, रियल लर्निंग तुम्हारा तभी से चालू होगा। दैट इज व्हाई वी आर हियर टू एनकरेज। वो जो मैंने भी जो स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट जर्नी थी, जो मैंने ज्यादा फोकस नहीं दिया, 1-2 शेयर पे दिया, वो मैं ज्यादा, तो ये मैं आज तुमको करवाना है। I'm here to make you realize the importance of investing. Start with that one share. Start one, then you will automatically take that another share. You will automatically take that third share. Okay. और मार्केट प्राइस नीचे है तो डरना मत। पहली बात, कंपनी पे पूरा भरोसा रखना तो ही उसको खरीदना, क्योंकि वो मार्केट है, नीचे भी आएगा ऊपर भी जाएगा, नीचे जाएगा तो और खरीदो अगर तुमको कंपनी पे भरोसा है तो, ठीक है। डोंट वरी। आईसीआईसीआई बैंक मैंने देखा है 200 से 150 भी गया, मैंने खरीदा उसको। आई हैव फुल ट्रस्ट ऑन द मैनेजमेंट ऑफ आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। मैनेजमेंट कितना पढ़ा लिखा है, कितना क्वालिफाइड है, कितना काबिल है, लर्न दैट फर्स्ट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैनेजमेंट आर ओनली, परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट आर ओनली गोइंग टू इंप्रूव द फंडामेंटल्स ऑफ दैट कंपनी।
ठीक है, अल्टीमेटली एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द मैनेजमेंट, वी आर द शेयर होल्डर्स, हम तो हमारे घर पे, मैनेजमेंट आर द दोज हु आर गोइंग टू मैनेज आउट द कंपनी। तो देखो फर्स्ट फाइंड आउट कितने, क्यों एचडीएफसी बैंक पे लोग ब्लाइंडली भरोसा करते हैं, बिकॉज ऑफ दीपक पारिक, ही इज द मैन, ठीक है, उस पे बेट करते हैं लोग, एचडीएफसी बैंक चलेगा। ओके, सो नेक्स्ट वन, और कुछ? there is one more question है, like वेदांती राउत, she is asking that अभी बिगिनर्स के लिए आईसीआईसीआई में इन्वेस्ट करना सेफ रहेगा क्या? या आईसीआईसीआई बैंक इज यहां से भी सस्ता है, कंपेयर इट विद एचडीएफसी। लुक, एचडीएफसी हियर इज एट 1500 to 1600 भाव चल रहा है, आईसीआईसीआई 700, इधर से भी आईसीआईसीआई जाएगा। मैं आईसीआईसीआई को आई पर्सनली फील आईसीआईसीआई 2000 to 2500, ठीक है, 700-800 मिल रहा है, आराम से लो आईसीआईसीआई बैंक। इवन मकसूद सर हैज अ नाइस अमाउंट ऑफ होल्डिंग इन, आई वुड लाइक टू गिव यू अ डिस्क्लोजर, मकसूद सर आल्सो हैव अ नाइस अमाउंट ऑफ आईसीआईसीआई होल्डिंग बिलो 400, ठीक है। हाँ, हमारा फेवरेट स्टॉक है, मैंने खुद मकसूद सर को इंसिस्ट किया था कि सर आईसीआईसीआई बैंक पोर्टफोलियो में रखो। सर आल्सो सेड अरे 380 आ गया, चलेगा क्या? आई सेड अरे सर बिंदास। फिर सर आल्सो बैक हिज स्टडी, सर ने भी अपना स्टडी देखा, अरे यार सही बोल रहे हैं सर, ये स्टडी के साथ जाएगा ऊपर, दम है कंपनी, क्योंकि क्वार्टर वाइज उसके परफॉर्मेंस बढ़ते आ रहे हैं। तुम देखोगे हर उसका क्वार्टरली रिजल्ट चेक करो, अभी क्या गया है, अभी जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट है दैट इज बेटर देन अप्रैल में जून का क्वार्टर का रिजल्ट। अप्रैल में जून क्वार्टर का रिजल्ट इज बेटर देन जैन फेब मार्च का। क्वार्टरली कंपनी ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, तो क्यों नहीं उसका मार्केट प्राइस बढ़ेगा? आराम से बढ़ेगा। आईसीआईसीआई बैंक इज वन ऑफ द, आज भी मल्टीबैगर है। देखो अगला रिलायंस कौन बनने वाला है? रिलायंस इंडस्ट्रीज ही अगला रिलायंस बनने वाला है। जितना रिलायंस आगे जा रहा है ना, जितना एक्सपेंशन कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, ठीक है। रिलायंस इज गोइंग टू अगेन रूल दिस डेकेड आल्सो इंडिया, बिल्कुल मेरे को कोई शक नहीं है। रिलायंस मेरा हॉट फेवरेट है, इट इज इटसेल्फ अ सेक्टर, रिलायंस इंडस्ट्री, वैसे ही आईसीआईसीआई बैंक है। ओके, फिर नेक्स्ट वन। Yes, students, any more doubts are there? More doubt? Shall we wind up? Yes, students. I No think doubts. one of, yeah, please speak up, please speak up. यस, फील फ्री यार, आराम से बोलना, हिंदी में बोल। Sir, can you tell about that penny stock? Should we invest in that or not? IDFC First Bank. Only one bank? Listen. No. Penny stocks, you should never go on penny stocks. ठीक है, अगर तुमको आगे बड़ा बनना है, you should never go. Look what I'm saying. No private bank can ever shut down. Okay, RBI will not allow a private bank to close down at any cost. If any one of the private banks close down, then the entire trust of the people would go on these banks, and this is very dangerous for the economy. Okay, so the private banks will definitely perform. Okay, and IDFC First Bank is one of the, if you want to go for penny stock, I personally believe IDFC First Bank is a very nice bet on that penny stock. Next, if you want a nice penny stock, is Trident. Trident is because look at this business, it is diversified. It's a somewhat I think 30-40 rupees stock. अभी वो बहुत चल चुका है, dip पे buy करना Trident. Okay. Next one, if you want a penny stock, I think my personal level is this one, First Source Solution. ठीक है, 150-200 का है, excellent. First Source Solution Limited, FSSL, nice stock. NRB Bearings, Motherson Sumi तुम ले लो यार, और कुछ मत लो यार, Motherson Sumi से बेस्ट स्टॉक नहीं मिलेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा डरने का नहीं। Trust on the business of the business. Okay, trust on his business, bet on his business. Excellent business of Motherson Sumi. I have said you ना, देश में दुनिया में कोई भी गाड़ी बिकेगी, स्पेयर पार्ट्स किससे ले गया? Motherson Sumi, और हमारे देश की कंपनी से। BMW बनता जर्मनी ने, कहां से लेके जाता है स्पेयर पार्ट? अपने Motherson Sumi से लेके जाते हैं, इंडियन कंपनी से, ठीक है। तो उसका 70% इनकम ग्लोबली आता है, फ्रॉम यूरोप, अमेरिका एंड ऑल। यू कुड बेट ऑन द बिजनेस ऑफ Motherson Sumi Systems Limited, ठीक है, एक्सीलेंट स्टॉक। मम्मी और बेटे ने ये कंपनी चालू किया था 1 लाख रुपए से,
40 साल पहले। आज के डेट में उनके पास 22 टू 23 सब्सिडरीज है, ठीक है, ऑफ मदरसन सुमी, मदरसन सुमी के पास, ठीक है। इट्स एक्सीलेंट कंपनी मदरसन सुमी। ओके, ट्राइड पेनी में ज्यादा जाना नहीं चाहिए। हाँ, One या more question, sir. Minimum कितने अमाउंट से इन्वेस्ट करना चाहिए? कांचन इज आस्किंग. यस. या मिनिमम नो, अकॉर्डिंग टू योर नीड्स ना। आपके पास मैंने बोला ना 45-50 रुपीज वाला भी मैंने आपको एक आइडिया दिया। एक शेयर भी ले सकते हो आपके पास 200 रुपीज, 4 शेयर लो, पहले 4 शेयर लो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के, देन अगेन अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, अकॉर्डिंग टू योर फाइनेंशियल कैपेसिटी यू कुड इन्वेस्ट ना। आपके पास 50 रुपीज के 4 शेयर ले लो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के, नहीं लेना तो यार फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड का एक शेयर ले लो, 180-200 का आता है। अगर आपको आईटी ज्यादा अच्छा लगता है, अगर आपको बैंक से ज्यादा आईटी, यू फेवर आईटी, तो गो फॉर फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड। देखो हमारे यहाँ पे आप यू कुड ओपन अ डीमैट फ्री ऑफ कॉस्ट, स्टडी शेयर सारे भाव में अवेलेबल है, अच्छे भाव में। मैंने बोला ना, अगर आपको छोटे शेयर में जाना तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो सेक्टरल इंडस्ट्रीज में जाओ, मनी कंट्रोल के, वहां पे देखो 50-100 रुपए वाले कौन से स्टॉक। एक बिरला सॉफ्ट करके कंपनी थी, 100 रुपए में आ रही थी पिछले साल, 100 रुपए में, नाउ इट इज 500 रुपीज। 500 रुपीज, 100 रुपए की कंपनी एक साल में 500 कैसे हुई? वो निफ्टी आईटी, जो मनी कंट्रोल का निफ्टी आईटी, उसके अंदर वो था, वो छोटा स्टॉक था 50-100, यू कुड बेट ऑन दैट ना। वो सेबी ने तुम्हारे लिए बनाया है, वो सेबी ने वो सेक्टोरियल इंडेक्सेस क्यों बनाया है? फॉर यू पीपल, द बिगिनर्स, ताकि तुम इधर उधर पैसा लगाने की जगह उन्होंने जो सेक्टर्स में जो वो क्लासिफाई करके दिया, तुम उधर पैसा लगाओ, योर मनी विल बी सेफ। इन्वेस्ट कर रहे हो, थोड़ा नीचे आएगा, कभी ऊपर जाएगा, डोंट वरी, जाना अल्टीमेटली उसको ऊपर है। Sir, what about Paytm stocks? हाँ, पेटीएम, What about Paytm stock? Pratham Raut is asking, sir. Okay, Paytm is, look, Paytm was overpriced. ठीक है, Paytm is currently a loss making, जैसे मैंने Z Entertainment बोला था, Z Entertainment में न्यू मार्केट में it was a loss making, शेयर होल्डर अपने प्ले, हम तो पर Z हमको लगा था ओ वाओ व्हाट अ कंपनी, ठीक है, पर वो क्या निकला? Paytm is currently a loss making company। ये न्यू एज कंपनी, आपको इसमें जाना है ना, यू गो फॉर नजारा टेक्नोलॉजीज, यू गो फॉर नाइका। नाइका देखो तुमको एक बताता हूँ, लड़कियां कभी भी मेकअप करना छोड़ेगी क्या? अपने आप को पूछो एक क्वेश्चन, नहीं छोड़ेगी, उनका मेकअप दिन बर दिन बढ़ेगा, तो गो फॉर नाइका, खत्म बात, टॉपिक क्लोज। कभी कोई लड़की मेकअप करना जो नहीं करती वो करेगी, और जो मेकअप करती वो और लगाएंगे, और सजेगे दजेगे, तो हु विल बी बेनिफिटेड इन द एंटायर स्टॉक मार्केट? किसको बेनिफिट मेजर जाएगा? नाइका, गो फॉर नाइका। पेटीएम से अच्छा नाइका है। पेटीएम के कितने सब कॉम्पिटिटर्स है? मोनोपोली में जाओ ना यार, नाइका इज द मोनोपोली। पेटीएम के गूगल पे, फोन पे कितने सारे ये लोग जो भी आएंगे, ये उसके नहीं है। अभी पेटीएम देखो ना, कौन, मैं तो मेरे मोबाइल में गूगल पे, फोन पे ज्यादा यूज करता हूँ भाई, पेटीएम से, कॉमन सेंस, आई यूज मोर गूगल पे, फोन पे, और ये अपना जो भी मोबाइल एप्स आते हैं वो मैं बैंकिंग एप्स के जरिए मनी ट्रांसफर रादर देन पेटीएम। पर नाइका चलेगा कि नहीं चलेगा? नाइका इज नो कॉम्पिटिटर, वो चलना ही चलना है उसको। मेरे को नहीं लगता। जोमेटो, हाँ, जोमेटो, ओके, वेरी नाइस। जोमेटो का अच्छा फ्यूचर है। ये बिजनेस इंडिया में बढ़ेगा। ये जैसे देखो, तुमको पता है अमेजोन, कौन सोचा था कि लोग, हम इंडियंस, हमको क्या पसंद था, दुकान में जाएंगे, 5 ड्रेस चेंज करेंगे, ठीक है। गर्ल्स क्या करती थी, 5-6 को लेके जाती थी, मैं ये पहन के आती हूँ, तू देख अच्छी दिख रही कि नहीं, ये कलर अच्छा है कि नहीं, वरना मैं जाऊंगी दूसरा चेंज करेगा, ये था। पर देखो आज हम क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं हम कपड़ों का, मिंत्रा से घर पे मंगवा रहे। वैसे ही जोमेटो, हमको अभी क्या पसंद आ रहा है, ऑनलाइन हमारे घर पे आके वो डिलीवरी देके जाए, ठीक है, तो हम घर पे खाना, वो दैट इज जोमेटो बिजनेस बढ़ेगा, न्यू एज बिजनेस है, ये चलेगा। पर वो ओवर वैल्यूड है, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, आई वुड नॉट एंटर एट प्रेजेंट इन जोमेटो। उससे अच्छा मैं बोलूं ना, बर्गर किंग है, एंटर इन बर्गर किंग। बर्गर किंग अभी अच्छा वैल्यू में अवेलेबल है, ये चलेगा, ये बर्गर किंग। जोमेटो से अच्छा जोमेटो एंटर करना चाहिए, वेट फॉर एंट्री। नो करेंटली इट इज ओवर वैल्यूड, आएगा टाइम आएगा, तुमको भी दिखेगा वो 100 रुपए में जोमेटो। देखो लॉस अभी करेंटली कंपनी कर रहा है, कंपनी अच्छा, और कंपनी क्या कर रहा है फिलहाल, लॉस। जब कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग होने दो, तो कंपनी तुमको कमा के देगा, तब एंटर करो जोमेटो। करेंटली यू कुड एंटर इन बर्गर किंग, ओके। एंड मोर के बाद सर कितना चार्जेस होगा?
Good question. हाँ 5 साल आपका 10 साल फ्री करा दूंगा. ओके 5 साल Okay. के बाद और 5 रिन्यू करा दूंगा. ठीक है. अरे आई एम द सब ब्रोकर यार, बिजनेस पार्टनर ऑफ मोतीलाल. आज मैं आया हूँ आपको हेल्प करने को. आप नॉलेज लो, आपको एक लिंक दिया जाएगा, आप डॉक्यूमेंट्स भेजो, आपका 5 साल का एएमसी फ्री रखूंगा और 5 साल का और 5 साल फ्री करा दूंगा. ठीक है. अरे अभी देखो सीधा बोला हूं इधर 5 साल और आपको दे रहा हूँ 5 साल एएमसी फ्री, तभी भी दे दूंगा, डोंट वरी. ठीक है. हम भी आपके जैसे स्टूडेंट थे. ठीक है. नॉलेज आप ले लो, कोई पैसे का कोई मैं तुमसे कमा के क्या कर लूंगा. ठीक है. Sir has lot of other clients, so do not worry about the students. या ये वो अपना ये नहीं, एनुअली साल में तुमसे 500-600 मेरे को नहीं कमाना. आप डेली 500-600 2000 2500 इससे साइड के जैसा कमा लो, वो मेरा ये. ओके Okay, any doubt, students? Okay, those who are interested to join us, okay, to enjoy this journey of you want us as a guidance, a guiding force for you. So we will provide you a list of documents. You could send everyone your documents. Free way है यार. ठीक है. एक बार try करके देख लेना. ठीक है. You could open your Demat account with us. Take the first baby step of opening a Demat account with us, and then the rest will be history. Don't worry. ठीक है. मैंने भी ऐसे ही चालू किया था और रेस्ट इज हिस्ट्री टुडे. Okay, sir. Okay. I think yes, we will wind up. Zishan is having question, Lakshmi Finance. Can you talk about Lakshmi Finance? And Ishan is asking, can you talk about best SIP? Sir, last 2 questions and then we'll wind up, sir. Okay, best SIP. Is he talking about stock SIP or mutual funds? Yes, Ishan, is it stock SIP or mutual fund? Mutual fund. Yeah, I think mutual funds. या म्यूचुअल फंड्स आर बेस्ट. अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि तुम कौन सा कंपनी लोगे, इतना कंफ्यूजन यार, इतना कंफ्यूजन, कौन सा कंपनी लोगे, तो यार यू कुड also go for mutual funds also with us. It will be brokerage free, don't worry. ठीक है. तो म्यूचुअल फंड्स में आपको 500 रुपए में आपको 50 कंपनियां दिला दूंगा. म्यूचुअल फंड्स में you invest only 500 rupees per month and you will get 50 companies. बेस्ट म्यूचुअल फंड फिलहाल मेरे को लग रहा है 3 नाम बोलूंगा, बहुत जबरदस्त है तीनों के तीनों. ठीक है. एक्सेस फ्लेक्सी कैप, एक्सेस फ्लेक्सी कैप, उसका होल्डिंग जाके चेक करो, मजा आ जाएगा. 50 कंपनियां देखोगे, मजा आ जाएगा. 500 रुपए में तुमको 50 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करके दे रहा है. एक्सेस फ्लेक्सी कैप. रिटर्न्स ऑब्वियसली कम रहेंगे, म्यूचुअल फंड्स में 15-20% 25% रहेंगे. ठीक है. स्टॉक्स में यू कुड गेट 50% 100% रिटर्न. ठीक है. तो एक्सेस फ्लेक्सी कैप इज वन एसआईपी, वेरी नाइस. नेक्स्ट वन इज पराग परिग फ्लेक्सी कैप. या ये पराग परिग फ्लेक्सी कैप में तुम्हारा पैसा इंडियन कंपनीज में भी इन्वेस्ट होगा एंड फॉरेन कंपनीज में भी इन्वेस्ट होगा. पराग परिग फ्लेक्सी कैप में तुम्हारा पैसा टीसीएस में भी लगेगा, इन्फोसिस में भी लगेगा, एचडीएफसी बैंक में लगेगा, प्लस अमेजॉन में भी लगेगा, गूगल में भी लगेगा, सुजुकी में भी लगेगा, तो अल्फाबेट में भी लगेगा, माइक्रोसॉफ्ट में भी लगेगा. तो पराग परिग फ्लेक्सी कैप इज अनदर फंड. एंड थर्ड वन इज मीराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप. हमारे पूरे सीएफ फ्रेटर्निटी का बेस्ट म्यूचुअल फंड है मीराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप. लार्ज एंड मिड कैप कंपनी में पैसा लगाता है, हाईएस्ट रिटर्न गिविंग म्यूचुअल फंड है ये, बेस्ट म्यूचुअल फंड है. तो 3 मैंने बोला, एक्सेस फ्लेक्सी कैप, पराग परिग फ्लेक्सी कैप आपका ये इंडिया प्लस इंटरनेशनल एक्सपोजर देता है. थर्ड वन इज मीराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप. आपको मैं ये भी सिखा दूंगा कि कैसे बेस्ट म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हैं. एक आधे घंटे में मैं आपको 8 क्राइटेरिया भी बता सकता हूँ, वो किस दिन और कंडक्ट करेंगे कि बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट करते हैं. कोई भी सिलेक्ट, आपको एक कॉमन सेंस बताऊंगा, 8 क्राइटेरिया टिक हुई, ये म्यूचुअल फंड अच्छा है. पर मेरे हिसाब से यू शुड ऑल्सो इन्वेस्ट इन इक्विटी डायरेक्टली. म्यूचुअल फंड तो होना ही चाहिए बट इक्विटी जरूरी है. ओके. इक्विटी में तो आपको बोला फास्टेस्ट ग्रोइंग एसेट ऑन अर्थ है. आप 500 रुपए एसआईपी करोगे, 500 रुपए आप इक्विटी में डालोगे, ज्यादा आपको इक्विटी देगा रिटर्न. अल्टीमेटली कौन रिटर्न ज्यादा, अच्छी जगह पे पैसा लगाओ, सब जगह पैसा बनेगा. ठीक है. इन्फॉर्म्ड डिसीजन लो, पक्का पैसा बनेगा. ओके. Yes, sir. We'll wind up. Thank you so much. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you for your time. Okay. Yeah. Okay. Bye, sir. Bye. Yes, I would like to. Yes, sir. Are you there? Shrikant sir. I think sir is. Yeah, Shrikant sir. हाँ. Yeah, sir.
I would like to thank on behalf of the class. Anyone want to Okay. speak anything? Thanks speech, please. Any one of you? Anyone from you all? Hindi में बोलो. Thanks speech. No, not message, not message. Students, not message. Okay. No, it's All are saying thank you in the chat box. okay. Sir, Yeah. thank you so Someone much. is saying. Thank you so much on behalf of the Yeah. Okay. stock market this certification program I am conducting. 40 days Yeah. certificate program I'm conducting. I think last few sessions are remaining. On behalf of Okay. the class, I would like to thank you for enlightening sir. about the stock market, My pleasure, sir. how to select the stock, and which stocks are can be selected in a seasonal basis, and also about the intraday trading, and also clearing the doubts of the students. So I am very much thankful to you. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you so much for your time. Okay. My pleasure, sir. Yes, sir. Yes, sir. Am I audible, students? Am I audible? Yes, sir. Okay. So how's the session? You can put on your mic now. आप अभी message पे थोड़ा सा भी नहीं बोलोगे तो भी चलेगा. आप डायरेक्टली माइक ऑन करके भी रिप्लाई कर सकते हो. Yes. Yes, students. बहुत अच्छा सेशन था सर. बहुत बढ़िया. So I would like to tell you that अभी जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बोला था that you can open the account in Zerodha. You can Chandan Thakur is asking for number. Yes, definitely I will provide you the number. ठीक है, आपको number and all everything you will get it. Do not worry about that. So you 40 students are very much lucky to attend this session live, and the rest others who will be watching the video. So also I am requesting each and every one, each 94 students are there. So 94 students को सभी को मैं यही request करूंगा that I suggested you for Zerodha, I suggested you for Fires, TradingView. ठीक है, that is okay. But later on I realized that at this age you need a mentor, you need a person who can guide you. So it is the best thing that Shrikant sir is there with us, and Shrikant sir can guide you for free, like a mentorship program you can get it. So मुझे ऐसा लगता है कि एक स्टार्टिंग जब है तो हमारे ऊपर कोई कोच या हमारा कोई मेंटर होना चाहिए who can guide us all the time, and he is all the time into the stock market and he is very much updated. ठीक है, बहुत ज्यादा updated रहते हैं. As I have some restrictions, so that's why I am going to the college and taking the lecture. So मेरा morning का time it goes in the lecture. So I am not able to guide you that much. But yes, definitely Shrikant sir can guide you, and whatever the doubts are there and whatever the stock ideas, I just went to the app. मुझे app के through मैं गया, app में देखा कि stock ideas भी मिलती है. मतलब मुझे किसी को call करने की भी जरूरत नहीं, just app में मुझे पता चल जाता है कि ये stock ideas है और स्टॉक बास्केट है. अगर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो मैं स्टॉक बास्केट में से कोई ना कोई एक. यस सर, आपका भी अकाउंट है, आप क्या फीडबैक, आपका क्या फीडबैक है? सर्वेश, मैंने अभी तक मैंने अकाउंट ओपन किया है. मेरा छोटा सा एक प्रोसीजर बाकी रह गया है जो सर मुझे 2 दिन से बोल रहे हैं, लेकिन मैं दे नहीं पा रहा हूँ डॉक्यूमेंट. लास्ट 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट अभी मैं ये लेक्चर के बाद ही निकाल के उनको भेज दूंगा. एंड मेरा जो मतलब मैंने अभी तक ओपन नहीं किया है, बट हाँ मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड है वो, और बहुत बार मिल चुका हूँ. हम लोग साथ में लॉ भी कर रहे हैं, एंड आई नो हिम वेरी वेल. Yes, I am there. I am always there, Ishan. No problem in that. Okay, I am there always. But if you open the Demat account over there, then you can, sir, हमें गाइड करेंगे किस कंपनी के स्टॉक्स लेने चाहिए, पैसे कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करें. Yes, हिमानी, you will get the guidance. That mentorship का मतलब क्या होता है कि आपको कौन सी कंपनी में पैसे लगाने हैं, इन्वेस्ट करने हैं. आपको इंट्राडे के लिए भी उन्होंने, मतलब ये इंट्राडे के लिए तो बहुत बड़ा अमाउंट जाता है. इट इज अराउंड 25 to 40,000. सो मैं क्या करता हूँ, 25 to 40,000 अभी मैं, मेरे जैसा पर्सन एक है कि लाइक इन्वेस्ट कर सकता है कि लाइक 25-40,000 हमने सोचा कि छोड़ दिया, भूल गए 25,000-40,000 देके. सो मैंने 25,000 अगर दे दिया तो दैट श्रीकांत सर उनका कैसा है कि
हफ्ते में 5 दिन मार्केट ओपन रहता है, हफ्ते में 5 दिन ये स्टॉक मार्केट ओपन रहता है, तो हफ्ते में 5 दिन में से एक दिन इनका खाली एक आध मिस हो सकता है, 4 दिन तो इनको वो ही विल गिव यू द अर्निंग्स. So 4 out of 5 days, 4 days definitely is going to give you the earning. So this is what the their trade calls are. So intraday पे ये एक benefit है. अगर आप 25 to 40,000 rupees invest करोगे, I will not suggest you to invest in that amount. उतना amount आप मत करना, ठीक है. आप सिर्फ मेरा इतना ही बोलने का है कि मैं खाली ये बताना चाहता हूँ कि 25 to 40,000 अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो एवरी डे 500 to 1000 रुपीज वो सर हमें हमारे अकाउंट में ऐड होते जाएगा ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट में. वो इंट्राडे की ट्रेडिंग करेंगे हमारे अकाउंट से एंड ही इज गोइंग टू अर्न द मनी. सो अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग हियर, वी आर क्रिएटिंग अवर पैसिव इनकम. ये इंट्राडे से हो रहा है, ठीक है. तो आपका एक 15,000 10,000 to 15,000 के बीच में आपको मंथली इनकम आपका बढ़ता जाएगा. अल्टीमेटली क्या होगा, ये 10,000 को आप क्या करोगे, डायरेक्टली मंथ का निकालोगे, मंथ में डायरेक्टली स्टॉक्स में डाल देना है. अब ये पैसा आपका क्या है, ये 10,000 इज योर एक्स्ट्रा मनी. दैट एक्स्ट्रा मनी यू कैन इन्वेस्ट इन द लॉन्ग टर्म. So here this is an idea he gave to me and he was also giving to you, but मैं ये बोलूंगा कि you can just invest into the, you can just open the demat account and start investing with 500 200 rupees. Whatever stocks he's suggesting you, वो जो भी suggest कर रहे हैं उसमें आप invest करो. So that is what the thing is. So social media है, so social media के through बहुत कुछ हो सकता है. And also one more very big thing is annual maintenance charges are not there. You search the annual maintenance charges of Zerodha, Fire, TradingView, then Angel One, ठीक है. तो that is the thing. वो वहां से हमारा annual charges कट हो जाता है. तो 5 years के लिए annual charges is free. और 5 साल के बाद भी छठे साल में कितना annual charges रहता है, 500,000 रुपीज साल का वो भी. सो आप उससे ज्यादा तो एवरीडे आप वो 1000 रुपीज कर सकते हो. मतलब आपको साल भर चीज यूज करने मिल रही है अकाउंट, और आपका एक दिन का इनकम वो खाली एनुअल चार्जेस जा रहा है. तो इट इज नॉट अ बिग अमाउंट ओवर देयर. सो 5 इयर्स के लिए तो फ्री मिल रहा है. टेक अ बेनिफिट ऑफ दैट, ठीक है. सो इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड, इफ एनी वन ऑफ यू आर इंटरेस्टेड, लाइक हु ऑल आर इंटरेस्टेड, यू कैन मैसेज मी दैट इंटरेस्टेड फॉर डीमैट अकाउंट. खाली इतना आप मैसेज पोस्ट करना ग्रुप पे, so that I will provide you the details of whatever the documents are required, and you can directly I'll give you the number of the staff who is working under Shrikant sir. Shrikant sir के पास 2-3 staff है, so वो directly आपको account opening करने में guide करेंगे, ठीक है. so वो एक better रहेगा. also आप क्या कर सकते हो कि like आप खाली account जब open होगा तो खाली इतना बोलना है कि हम stock market के students हैं. तो कैसा है कि वो आपके annual maintenance charges जो है वहां से waived off कर देंगे, वो निकाल देंगे वो criteria से. So वो एक आप बता सकते हो, ठीक है. So if any one of you is interested, you can post the message in the WhatsApp group itself, no problem in that, ठीक है. So I would like suggest here that आप कर सकते हो. We open demat account from you, we have open other from Shrikant sir. अच्छा, we open demat account from you. अच्छा, मतलब मैं समझा नहीं ईशान, मतलब डीमैट अकाउंट मेरे से ओपन किया है, हाँ मतलब ग्रो में ओपन किया है. हाँ तो सर हम लोग को एक एक्स्ट्रा अकाउंट भी खोलना पड़ेगा सर के साथ से. हाँ मतलब आप खोल सकते हो. देखो मतलब वो क्या है ना, मोतीलाल मेरे पास तो 4 अकाउंट है. एक एंजल वन में अभी तक तो मैंने वो दिखाया नहीं आप लोग को. वो एंजल वन दिखाऊंगा तो आपकी आंख बड़ी हो जाएगी, इसके लिए मैं वो दिखाऊंगा भी नहीं. बाद में दिखाऊंगा कभी, जब थोड़े और टाइम जाएगा तो बाद में बताऊंगा. सो एंजल वन में मेरा अकाउंट है. मेरा अकाउंट इसमें जेरोडा में है, फायर्स में है, ठीक है. अभी मैंने मोतीलाल ओसवाल में खोला है. तो आप 4-5 डीमैट अकाउंट खोलोगे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट क्या है ना, यू कैन चूज द बेस्ट आउट ऑफ इट, ठीक है. और मनी कंट्रोल का यूज करना सीखो, मनी कंट्रोल का यूज करना सीखो. और एक अकाउंट आप डीमैट अकाउंट आप ओपन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. दूसरा डीमैट अकाउंट ओपन करोगे, इट्स नॉट ऑल कोई एनी हार्म इन दैट, ठीक है. सो इफ यू वांट टू ओपन, यू कैन ओपन द अकाउंट, इट्स अप टू यू ऑल, ओके. सो एक मेरा ये बोलने का है कि लाइक अल्टीमेटली यू विल गेट द मेंटरशिप, एक सजेशन मिलेगा. बिकॉज ऑल द टाइम आई एम नॉट एबल टू, लाइक मॉर्निंग का जो मेन मार्केट का टाइम है, at that time only I am taking the lecture. So that's why I thought of like I can ask Shrikant sir, I can request Shrikant sir to come and speak about the stock market. And because और अभी वो सब ब्रोकर भी हुए हैं, तो he is having a good knowledge, उनका डायरेक्टली अंदर तक कनेक्शन रहता है. तो ऐसी बड़ी जो हमारा डायरेक्ट कनेक्शन रहता है ना. मैं जेरोडा में ओपन करूंगा अकाउंट तो मेरा जेरोडा के साथ पहचान नहीं है ना, जो मेन अंदर काम कर रहा है. यहाँ पे मेरा डायरेक्टली श्रीकांत सर से पहचान है, तो क्या कुछ इनसाइडर न्यूज एंड ऑल एवरीथिंग यू कैन गेट, ऑल द बेनिफिट यू कैन गेट. सो it is not at all harmful to open the second account, Ishan. Anything you want to ask? We will wind up today or else, ठीक है. Yes, please.
when we go in BSc, जिशान BSc में मैंने बात किया फिर से मेरे जो फ्रेंड है नबरून चक्रवर्ती एंड दिस वन नबरून चक्रवर्ती एंड जो हमारे दूसरे एक सर है उनसे भी बात किया मैंने, तो उन्होंने बोला है कि अभी भी वर्चुअल विजिट्स हो रही है तो अलाउ नहीं कर रहे हैं कोविड की वजह से। सो डेफिनेटली डू नॉट वरी अबाउट दैट, हमारा ग्रुप है, हम लोग जनवरी फेब में देखेंगे जब भी जाना रहेगा। तो ऐसा मत समझना कि लाइक हम लोग मतलब स्टॉक मार्केट का कोर्स हो गया तो फिर सर जाना है नहीं जाना, ऐसा कुछ नहीं है। वी विल गो डेफिनेटली, बट बी इन कॉन्टेक्ट, बी इन टच विथ मी इन द कॉलेज। मेरे को आपके चेहरे नहीं पता, ठीक है, मुझे आपका नाम पता है। मैं नाम बोलोगे तो मैं तुरंत समझ जाएगा हाँ ये बच्चा स्टॉक मार्केट का है, मेरे पास सीख रहा है। वो क्या है कि मेरा फेस आपको दिखता है, आप मुझे पहचान सकते हो। खाली बोलने का सर स्टॉक मार्केट इतना खाली बोलेंगे तो मुझे समझ जाएगा कि हाँ ये मेरा बच्चा स्टॉक मार्केट का है। तो मुझे फेसेस से पता चलता जाएगा कि हाँ ये, क्योंकि मैं वॉक करते करते जाता हूँ मेरे लेक्चर्स लेने के लिए, मुझे समझता ही नहीं कौन मेरा स्टूडेंट है। और आप लोग को ऐसा फील होता रहेगा अरे सर तो बात ही नहीं कर रहे, बट सर को पता चेहरा रहेगा तो बात करेंगे ना सर। So you can tell me whatever is there. And also I am planning a good valedictory session. Valedictory means last final session, जिस दिन आप लोग को क्या करना है, एक प्रेजेंटेशन देना है। उसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या आपको प्रेजेंटेशन किस तरीके से देना है, आपको डॉक्यूमेंट फाइल, आपका असाइनमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे कल, ठीक है। कल नहीं परसों डिस्कस करेंगे। कल हम लोग को कुछ रेशियोज और भी देखने हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये है हमारा क्या बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, सो दैट वी आर गोइंग टू सी। एंड बाकी के जो भी चीजें हैं, जो भी हम लोग का जो हो रहा है, मतलब जो भी बाकी के जो फंडामेंटल एनालिसिस बाकी है इसमें, वो मैं कवर कराऊंगा आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बाबा खत्म कर रहे तो ऐसे ही खत्म करना है। जो भी है मेरे तरफ से जितना नॉलेज है आई विल प्रोवाइड यू, ठीक है। और उसके बाद भी सर है, सर इज ऑल्सो देयर। एंड हम लोग एक सेमिनार हॉल में, जो हमारा BMS बिल्डिंग है, वो सेमिनार हॉल के अंदर हम लोग एक वैलिडिक्टरी सेशन रखेंगे जिसमें हम लोग आपको सर्टिफिकेट्स देने का हमने सोचा है। श्रेया मैम से मेरा बात हुआ है, तो वी आर प्लानिंग टू गिव यू द सर्टिफिकेट्स ऑफ द कोर्स। तो हाँ स्टार्ट हो गया है जिशान, फंडामेंटल एनालिसिस हमने कल परसों से ही स्टार्ट कर दिया है स्टूडेंट्स। स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है फंडामेंटल एनालिसिस? गुणवान, हिमानी, कांचन, देन श्रेयस, बोलो बोलो। हाँ यस यू कैन, अभी बोलो पापा, थोड़ा मेरे लिए भी बोलो। ओके 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 वेदांती, यस हाँ ठीक है। सो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। जिशान देखो इतने सारे यस दिख रहे हैं, ठीक है। अभी मैं तो ऐसे ही नहीं बोलूंगा, तो स्टार्ट हो चुका है। वीडियोस देखो, वीडियोस देखो जी। मैनेजमेंट तक हुआ है, यस मैनेजमेंट तक हुआ, यस वेरी गुड वैशाली। हम लोग अभी रेड फ्लैग्स देखेंगे और हमारा एंड हो जाएगा। रेड फ्लैग्स के बाद हम लोग यहाँ पे जो मैंने एक्स्ट्रा बनाया आपके लिए फंडामेंटल एनालिसिस, वो भी देखने का है। 5 स्टेप एनालिसिस तो सीख रहे हैं हम लोग, और भी इसमें 5 स्टेप्स के अलावा और भी बाकी के रेशियोज है जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए काम आएंगे। यस बोलो, माइक ऑन है? यस जानवी का माइक ऑन है, प्लीज से व्हाट यू आर आस्किंग। ओके ठीक है ठीक है। सो एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क और शैल वी वाइंड अप टुडे? बोर हो गए सर, क्या? 1.5 घंटा हो गया। यस बोलो श्रेयस। कल आपने बोला था कि अगर CEO का किसी उसके फैमिली मेंबर के साथ कनेक्शन रहता है तो थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन, हाँ, थर्ड पार्टी कनेक्शन रहता है तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट कंपनी से ले सकता है, तो वो हमको कैसे समझेगा सर? आपको कैसे समझेगा? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है, ठीक है। तो वो आपको एनुअल रिपोर्ट में दिखेगा कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा हो रहे हैं क्या, ठीक है। जहां पे आपको पता है कि लाइक ये कंपनी है, तो आप कंपनी का इन डेप्थ एनालिसिस करोगे कि कंपनी अगर प्रोडक्ट बेच रही है, कोलगेट या कुछ बेच रही है, वो कंपनी जो रॉ मटेरियल खरीदना चाहिए तो एक अच्छा बायर है उनके पास नहीं खरीद के वो अपने कजिन रिलेटिव से खरीदेंगे, ठीक है, जिनका इतना नाम वगैरह भी नहीं है, तो वो खरीद रहे हैं, तो दैट मींस दैट इज अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, और वो वहां पे ज्यादा पैसा देने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर टेकिंग पुलिंग आउट द मनी फ्रॉम दैट, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस गुणवंत कैसा है कि लाइक मेरे लिए थोड़ा सा वो डिफिकल्ट रहेगा। टेक्निकल जो भी है मैं क्लियरली बताऊंगा, थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा टेक्निकल एनालिसिस बताना। है मेरे पास यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट एंड ऑल, लेकिन वो कैसा इट विल टेक मच ऑफ द टाइम, और बच्चों के एग्जाम्स भी आ रहे हैं बाकी के। सो टेक्निकल एनालिसिस मैं कवर नहीं करूंगा यहाँ पे इस सेशन में, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत सारे एक्स्ट्रा सेशन बीच में लिए हैं आपके लिए। मैंने प्रैक्टिकल सेशंस में मैंने आपको दिखाए हैं, चार्ट वगैरह एंड ऑल, पैटर्न्स वगैरह एंड ऑल। सो वी आर जस्ट कवरिंग व्हाटएवर द स्टॉक मार्केट में जो है, वो मैंने एक्स्ट्रा सेशन डाले थे जो है, दैट इज अगर इन केस हमारा प्रॉपरली हो जाता है टाइम पे, तो वो जो सेशन है वो मैं लेने वाला था। लेकिन कैसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि लाइक आप लोगों को मैं रिस्क में ना डालूं,
ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस ही बाकी सही रहेगा, ठीक है, बिकॉज सर ने भी देखो क्या बोला है कि इंट्राडे के लिए स्टार्टिंग में हमें जोश बहुत रहता है, तो वो इंट्राडे के लिए कैसा है कि उसमें मत जाओ, आप बहुत सारा लॉस कर सकते हो। मैं आपके अच्छे के लिए बता रहा हूँ, मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे को 4 सेशन लेने में एक्स्ट्रा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। सर यस सर थ्योरी एग्जाम के बाद में सर्टिफिकेट अलॉट होगा ना हमें? एग्जाम होगी ना हमारे? एग्जाम नहीं, आपका मैं असाइनमेंट लेने वाला हूँ, मेरा बात हो गया श्रेया मैम से, मैं आपका ओके। एग्जाम लेने वाला हूँ, सॉरी एग्जाम नहीं, आपका असाइनमेंट लेने वाला हूँ। असाइनमेंट में मैं आपको कल या परसों, असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन भी होगा ना सर? असाइनमेंट एंड प्रेजेंटेशन, सभी को प्रेजेंटेशन और असाइनमेंट देना है, तो ही आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, ठीक है, तभी आपका यहाँ पे कंप्लीटली जो भी है आपको सर्टिफिकेट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। और उसी सेशन में जो प्रेजेंटेशन होगा, तो प्रेजेंटेशन में आपको प्रेजेंटेशन बना के मुझे पहले भेजना है, मैं आपका प्रेजेंटेशन अप्रूव करूंगा और उसके बाद आपको वो प्रेजेंटेशन करना है, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। आपको प्रेजेंटेशन में बहुत इजी चीज है, कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है आपके लिए, ठीक है। मैं बहुत ही इजी चीज बोलने वाला हूँ करने के लिए, और जो सिखाया है वही करवाने वाला हूँ, कोई एक्स्ट्रा आपको कोई ऐसा एग्जाम जैसा कोई सर पे कुछ ऐसा कुछ डालने नहीं वाला आपके ऊपर प्रेशर, डू नॉट वरी अबाउट दैट। तो वट एवर आई एम गोइंग टू टेल यू, वो मैं परसों के सेशन में आपको बताने वाला हूँ कि क्या आपको बनाना है, और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट्स 1 या 2 हफ्ते के बाद जब भी हमारे सावे सर जो प्रिंसिपल सर है हमारे वो फ्री रहेंगे, तब उस दिन हम लोग एक सेशन रखने वाले वैलिडिक्टरी का, ठीक है, तभी आपको सर्टिफिकेट्स अलॉट होंगे। यस, सर एनीथिंग यू वांट टू आस्क? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मिनिमम कितने होने चाहिए? मिनिमम नहीं, ऐसा डिपेंड करता है, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी का कितना कैपिटल है, कंपनी की कितने परचेस ट्रांजैक्शन। अभी परचेस कंपनी कर रही है 100 रुपए का, उसमें से 30 रुपए का परचेस रिलेटेड पार्टी से कर रही है, तो नहीं चलेगा ना वो, ठीक है। 100 रुपए के परचेस में 30 रुपए नहीं चलेगा, 5 रुपए 10 रुपए ठीक है, ठीक है। तो एक 5% ठीक है, 5% एंड 10% तक ओके रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। ये बहुत कम होता है श्रेयस, ऐसे ट्रांजैक्शन जो है वो बहुत कम होते हैं। हमें मेन फोकस करना क्या है, आरओसी, आरओई, ईपीएस, डीपीएस, डिविडेंड यील्ड रेशियो, देन इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, डेब्ट इक्विटी रेशियो, ये सारी चीजों में हमें ज्यादा फोकस देना है, ठीक है। और कंपनी के बारे में जानना है कि कंपनी का किधर परचेसिंग सेलिंग चलता है, क्या कंपनी के प्रोडक्ट्स चल रहे हैं नहीं चल रहे मार्केट में, तो ये सारा डेटा हमें जमा करना है लॉन्ग टर्म के लिए। ओके सर। यस, बहुत बढ़िया, थैंक यू। और कौन है, तो पूछ रहा है कुछ? सर प्लीज 8 PM का रखो ना, 8 PM का एग्जाम। ठीक है, और प्लीज 8 PM रखो। 8 PM मेरे लिए बहुत लेट हो जाता है, आई हैव अ फैमिली, सो जिशा मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अभी 4 सेशन है, 4 भी नहीं 3 सेशन है हार्डली, कल परसों और उसके बाद एक और रहेगा। तो यस ईशान, आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, या थैंक यू सो मच फॉर टुडे सेशन, या वेलकम, यू कैन मैसेज इन दिस ग्रुप, जो भी आपको जो भी सेशन कैसा लगा एंड ऑल, यू कैन गिव अ फीडबैक इन द ग्रुप इटसेल्फ, ठीक है। 8 PM थोड़ा डिफिकल्ट हो गया ईशान मेरे लिए, ठीक है। मैंने 4 से 5 सेशन लास्ट सेशन नहीं देखा हो, तो आप पहले वो देखोगे उसके बाद ही आप अटेंड करोगे, तो कुछ नहीं समझेगा, बता रहा हूँ कुछ भी नहीं समझेगा। प्लीज वॉच ऑल द सेशंस। हाँ, वन मोर थिंग, आज 36 लोग प्रेजेंट है, एक और चीज मैं इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर देता हूँ, वीडियो की लिंक जो भेजी है ना वो दिसंबर 31 तक ही रहेगी अवेलेबल, उसके बाद आपको भी नहीं दिखने वाली हो लिंक, तो प्लीज हो सके उतना जल्दी से जल्दी देखो और कंप्लीट करो, ठीक है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं लिंक ये क्यों कर दूंगा, डिसेबल क्यों कर दूंगा, क्योंकि आप लोग फिर देखोगे ही नहीं, ठीक है, और उसको ज्यादा टाइम भी देंगे, टाइम लिमिट नहीं रखेंगे तो आप लोग उस पर ध्यान नहीं देने वाले हो। सो मैं वो लिंक डिसेबल कर दूंगा 31 दिसंबर के बाद, एक भी वीडियो नहीं देख पाओगे, जितने भी हम लोग ने अभी वीडियोस ये अपलोड किया है मैंने, ठीक है। और फीडबैक के बारे में भी बात करूंगा मैं आप लोगों से, ठीक है। एनीथिंग एल्स और शैल वी वाइंड अप? सर टाइप ऑफ ऑर्डर में आपने स्टॉप लॉस ऑर्डर बाकी है। स्टॉप लॉस ऑर्डर बताया था मैंने, स्टॉप लॉस ऑर्डर बताया था कांचन। स्टॉप लॉस जो रहता है उसमें हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं, बताया था, ये गुणवंत बोल रहे देखो। नहीं वो हुआ नहीं था सर, शायद टॉपिक आप बोले थे बाद में बताएंगे ऐसा। मैंने बताया था, एक्सप्लेन किया था, एक बार आप वीडियो चेक करो, अगर इनकेस नहीं रहेगा तो मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करके पर्सनली बता दूंगा, माइक से ऑन करके मैं आपको ये भेज दूंगा, ऑडियो रिकॉर्डिंग बता दूंगा।
यस, ये देखो ईशान भी बोल रहा है, बताया था नेक्स्ट डे। हाँ सर, अगर किसी आपको नहीं समझ रहा है, एक बार वीडियो देखो, वीडियो देखने के बाद भी नहीं समझ रहा है, देन आई विल पुट अ माइक रिकॉर्डिंग, मैं आपको माइक रिकॉर्डिंग से बता दूंगा। ओके सर। Okay, so shall we wind up, students? Okay, that's all. That's all. Thank you so much. Thank you so much, students. Have a nice day. And कॉलेज में मिलते हो तो आवाज दो, ठीक है? मुझे भी मालूम पड़ेगा मेरे कौन से बच्चे हैं स्टॉक मार्केट के, ठीक है? 40 दिन आपके साथ टाइम दिया है मैंने, है ना? Okay, so that's all. Have a nice day. Yeah. Okay. Yeah. Poonam is laughing. Okay. Thank you so much. Yeah. Bye bye.